So let us start meanwhile. So what do you think would be the agenda for today's session? Why we have named the session as why? Can somebody let me know? Why DevOps? Why DevOps? Okay. What else? Only why DevOps? No, actually, why DevOps will be covering in next session. What else? Cloud. Okay. Why cloud? Yes. Next. So see, throughout the course, right, we'll be focusing on three major technologies or tools, I would say rather. Why DevOps, why Linux, and why cloud. Everything, right? What we'll be doing, whatever we'll deploy, right? Everything we'll do on cloud itself. So it is very much important for us to understand first what is cloud, right? And before understanding what is cloud, let me take a poll. How many of you guys are like from a non-tech background? We'll of course start it from scratch, and then we'll understand what was the flaws and disadvantages in the traditional system and why the hell cloud has been developed, right? Came into picture. So before moving to cloud, we should understand first what were the flaws, challenges, right, in the traditional system. So we'll see that like one by one. But before, I would like to understand out of this like joint people, how many of you are from a non-tech background, so that I could get a count and we could start. So nobody's from a non-tech background. One plus. I could not see your name. How can I address you? My name is Lata Suryavanshi. Lata. Fine, Lata, no issues. So today, being a non-tech, we have more people from non-technical background. That is absolutely fine. Non-technical wale are most passionate. I've seen that. I've observed that in my experience. So no issues. Scratch se jaate hain so that everybody is on the same page, right? Let me start real quick. Scratch se jayenge and we'll try ki everybody has the same understanding, right? So Hi, sir. Sorry to cut you, but introduce yourself. Today's first session. okay, Bhushan, today is your first session. Yeah. That is fine. Eventually, even today is my second session. The first session was demo. If you have any queries, you can directly ask me anytime, because I like to have interactive sessions with the candidates. Yeah. Or if you have any doubts, any concerns, you guys can anytime stop me, ask it right away, right? This forum is for you. Make a better utilization of that, right? That is fine. I don't have any issue. First, before we move ahead to what is cloud, how does cloud came into picture, what is data center and everything, all that bullshit, let us understand what is a server first. Let's see who can answer it. What is a server, guys, as per you? And see, I want an answer in a business language. Theoretical answers के की कुछ value नहीं है organization में. They just test your conceptual knowledge. Answer खुद के word में बना के दोगे तो भी that is fine. Tell me, what is a Server is server? nothing but a computer. Server is a computer, correct? Okay. What else? Yeah, it is a strong system which helps to provide some kind of services or which provides some kind of services. Okay. ठीक है, ये भी correct है, but partially. What else? चलो, give it a try. I know this is a very basic question, but basic से जाएंगे ना तो at the end of the session we'll get a better clarity of why companies and people move to cloud, right? तो सबने वही चीज बोली है. किसी ने बोला कि एक प्रोग्राम है, किसी ने बोला मेरा कंप्यूटर ही एक सर्वर है, which is absolutely correct. See,
if I have to say what is a server, I'll simply say it in one line. क्या सर्वर को मैं बोलूंगा सर्वर is a platform which runs on top of hardware wherein the applications are hosted. Now what do I mean by that? See, these are my applications, right? Zoom, Chrome, Gitbash, Ubuntu, WSL, Teams. These are my application. Don't you think the thing which I'm using my laptop, that is also a server, a piece of server for that matter? क्यों? एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर कर्नल की लेयर है, कर्नल के ऊपर सॉफ्टवेयर है, और मैं सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ. So this is nothing but my server. What is a server? Simple एक लाइन में बोलूँ तो it is a platform which runs on top of hardware wherein the applications are hosted. Understood? Now let's move ahead and see. अभी आप लोगों को बोलना है, ठीक है? Let me increase the font size. What do you think would be a node? किसी ने सुना होगा, ये टर्मिनोलॉजी फेमिलियर रहेगी मे बी. नोड क्या हो सकता है? Collection of servers. परफेक्ट. नोड क्या है मतलब पता है? इफ आई हैव मोर देन वन सर्वर, दैट इज नथिंग बट माय नोड. अब वो कैसे नोड दिखता है, किधर दिखता है, वी विल कम टू दैट. मैं लाइव तुम लोगों को डेटा सेंटर बताऊंगा. तो डेटा सेंटर वाली टर्मिनोलॉजी दिमाग में रख के सोचो, व्हाट वुड बी अ नोड, व्हाट वुड बी अ सर्वर. इफ अगर तुम लोगों ने मुझे बोला कि कलेक्शन ऑफ नोड इज सॉरी कलेक्शन ऑफ सर्वर इज अ नोड, देन also tell me this. Now what do you think would be this? Cluster किसको बोलेंगे हम? If collection of node is collection of server is a node, then what do you think would be cluster? Collection of nodes. Collection of nodes. Perfect. देखा देखा, तुम लोगों ने एक चीज बताने की देरी है, एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ. सब लोगों को पता है इट सीम्स है ना, बट हम लोगों को एकदम स्क्रैच से एडवांस पे जाना है, ताकि जब हम पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा ना. सी, whenever a new technology is developed, right, do you know the reason why it is being developed? हर बारी मार्केट में जब नया टेक्नोलॉजी नया टूल आता है, why do you think it is developed? क्यों आती है वो? It works on the last technology problem in last technology. Perfect. Because Or there solution. there are flaws in the existing technology. अगर existing technology में कोई flaw हो ही नहीं, तो फिर मेरे को नए टेक्नोलॉजी की क्या ही जरूरत है, राइट? तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें क्या क्या फ्लॉज थे, व्हाट वर द इश्यूज, एंड हाउ पीपल डेल्ट विद दैट इश्यूज बाय डेवलपिंग न्यू टूल्स, बाय डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, वैसे टाइप में समझना है हमको, राइट? जस्ट आया, क्लाउड पढ़ाया, EC2 पढ़ाया एंड चले गए, दैट वोंट मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ, राइट? बिकॉज कभी कभी इंटरव्यूअर ना इतने बेसिक क्वेश्चंस भी पूछता है, इफ द इंटरव्यूअर इज डाउटफुल कि तुमने सच में डेवऑप्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. सो लाइक आई सेड कि तुम लोगों को कलेक्शन ऑफ सर्वर तुम लोगों ने बोल दिया नोड, कलेक्शन ऑफ नोड तुम लोगों ने बोल दिया क्लस्टर. व्हाट डू आई मीन बाय कलेक्शन ऑफ नोड? एक से ज्यादा जब मेरे नोड होंगे, इवन इफ इट इज 2 नोड, दैट बिकम्स माय क्लस्टर. नाउ यू गाइस टेल मी. अब आते हैं अपनी मुद्दे वाली बात पे, ठीक है? इफ अ कलेक्शन ऑफ नोड इज a cluster, let me copy this, paste this guy here. What is this? अगर मेरा collection of node is a cluster, then what is data center? Of clusters. Collection of clusters. Collection of clusters. Perfect. देखा, मेरे को जस्ट ना पुश करने की जरूरत है. That is the reason. See, I believe everybody has a potential. Just push करने की जरूरत है. मैं I am not here to मैं ऐसे ना तुम लोगों को ऐसे नहीं बोलने वाला हूँ, कुछ अलग करके दिखाने वाला हूँ. ये इन दिस एंटायर 6 months और 5 months ऑफ कोर्स जो भी हम पढ़ने वाले हैं, देयर वुड बी नथिंग डिफरेंट. लाइक अप्रोच अलग रहने वाली है सिर्फ पढ़ाने की. बाकी आई वुड जस्ट गिव यू अ रियलाइजेशन दैट यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द राइट स्किल, you have that talent, you can do it. I just
नीड टू पुश यू गाइस, और बहुत बारी हुआ है। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मेरी एक फर्स्ट बैच में देयर वाज अ गर्ल, हर नेम वाज पूनम। गाइस यू वोंट बिलीव उसने ना कभी जिंदगी में लैपटॉप ओपन करके भी मतलब ना चीजें चलाई नहीं थी। शी वाज दैट फ्रॉम अ दैट बैकग्राउंड, सोच रहे हो कितना नॉन टेक और कितनी इनिशियल बैकग्राउंड से थी। बट व्हेन शी डिप्लॉयड द इनग्रेस का सेशन ना, कुबरनेटिस में एक टॉपिक आएगा आगे विच इज एन एडवांस्ड टॉपिक, इनग्रेस बोलते हैं। जब उसने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और इनग्रेस डिप्लॉय किया ना सबसे पहले इन दैट बैच, आई केम टू नो कि भाई ये सबसे जल्दी जॉब ले जाएगी। एंड शी टुक द जॉब। थोड़ा सा उसको टाइम लगा बिकॉज उसको थोड़ा सा टेक्निकल लेयर पर ज्यादा ग्रूम करना पड़ा, बट शी टुक द जॉब। सो पीपल लाइक दिस राइट, जो पैशनेट होते हैं हमेशा, दे जस्ट नीड अ पुश। हर कोई कर सकता है। इफ एन एवरेज पर्सन लाइक मी कैन डू इट, एवरीबडी कैन डू इट, राइट? सो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ सर्वर, व्हाट इज अ नोड, व्हाट इज अ क्लस्टर, व्हाट इज अ डेटा सेंटर। नाउ यू गाइस हैव टू टेल मी, किसी ने कभी डेटा सेंटर देखा है क्या? यस। कहाँ पे Yes. देखा है? घर पे? नहीं, कंपनी। कंपनी में देखा है। ओके, उस पे आएंगे हम। कंपनी में जो डेटा सेंटर देखा है उसको क्या बोलते हैं ना, उसको आएंगे। बट आज देखना है क्या डेटा सेंटर किसी को? डू यू वांट टू सी द डेटा सेंटर? या परफेक्ट। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ गूगल का डेटा सेंटर। सब कुछ है ना अपने पास। गूगल को बोलेंगे तेरा ही डेटा सेंटर बता। सो देखो, दिस इज वन ऑफ द गूगल का डेटा सेंटर। अभी मैंने क्या चीज बोली थी, किधर बोली थी ना, वो दिखाता हूँ। इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? परफेक्ट, ये हो गया है बड़ा। अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा था सर्वर। तो ये जो है ना, सॉरी इधर ही होना, मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना एक इंडिविजुअल रैक है, ठीक है। ये जो है मेरा, ये इंडिविजुअल रैक है। ये इंडिविजुअल रैक को बोला जाता है नोड। ये देख रहे हो, एक रैक, दो रैक, तीन रैक। और ये रैक पे क्या है पता है? रैक पे ये मल्टीपल सर्वर है। तो ये देख रहे हो कलेक्शन ऑफ सर्वर्स, 1 2 3, ये जितने एक एक इंडिविजुअल पट्टी दिख रही है ना तुमको, दिस इज नथिंग बट माई सर्वर्स। और ये सर्वर कहाँ पे है पता है? ये सर्वर पे जो एक रैक है ना, एक नोड हो गया मेरा। ऐसे एक नोड, दो नोड, तीन नोड। अब ये कलेक्शन ऑफ नोड को हमने क्या बोला था? कलेक्शन ऑफ नोड इज नथिंग बट माई क्लस्टर। प्लस तो ये इतना बड़ा जो है ना मेरा, इतना बड़ा ये एक क्लस्टर है मान लो। और ये जो दूसरे 5 6 रैक का है ना, ये मान लो दूसरा क्लस्टर है। So collection of node is nothing but my cluster, and collection of cluster is my what? Data सेंटर। डेटा center. तो अभी समझा डेटा सेंटर क्या है। इस पे ना ये इमेज को ध्यान से देख लो, क्वेश्चंस आगे इसी पे होंगे, एंड आई वांट दिस सेशन टू बी वेरी मच इंटरेक्टिव। अब समझा इंडिविजुअल रैक, रैक जो होती है ये नोड होती है। कलेक्शन ऑफ नोड इज नथिंग बट योर क्लस्टर, एंड कलेक्शन ऑफ क्लस्टर, ये मेरा एक क्लस्टर है मान लो, ये जो ब्लू में दिख रहा है ये मेरा दूसरा क्लस्टर है। सो इफ इट इज मोर देन वन क्लस्टर देन इट बिकम्स माय डेटा सेंटर। अंडरस्टूड? एवरीबडी इज क्लियर? अब दूसरी पिक्चर देख लो इसकी, ये ध्यान से देखो। इस पे सब मैं पूछने वाला हूँ। सी क्या क्या चीज़ है यहाँ पे? लैंड है, पंखे है यहाँ पे, और थोड़ा सा पानी है ना? जो जो चीज़ें यहाँ पे सब देख लो, इसी पे क्वेश्चन होने वाले हैं अभी कुछ देर में, ठीक है? अंडरस्टूड? आगे बढ़े तो अभी मुझे एक बात बताओ। डेटा सेंटर तो देख लिया हमने, हमको समझ आ गई अभी कि व्हाट इज डेटा सेंटर। नाउ यू गाइस टेल मी, ये जो डेटा सेंटर टर्मिनोलॉजी है ना, पहली बात तो ये, व्हाई इट इज नीडेड? व्हाई डू वी नीड डेटा सेंटर? क्या लगता है तुम लोगों को, क्यों, व्हाई कंपनीज नीड डेटा सेंटर एट फर्स्ट प्लेस? फॉर सिक्योरिटी और स्टोरेज। Security purpose. बहुत बढ़िया। सिक्योरिटी किसी ने बोला, किसी ने स्टोरेज बोला, व्हाट एल्स? सोचो और क्या क्या चीज के लिए चाहिए अपने को? Centralized data. क्या क्या चाहिए, सॉरी? Centralized data के लिए. स्टोरेज मतलब ना सेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज बोल रहे हो आप? स्टोरेज हमने लिख लिया, व्हाट एल्स? होस्टिंग। होस्टिंग, होस्टिंग ना? होस्टिंग Yeah, व्हाट? to host some servers kind of things. परफेक्ट, व्हाट एल्स? बोलो यार, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टेल है ना इन डेटा सेंटर की। पहले बात तो वो समझना चाहिए ना हमको कि डेटा सेंटर ठीक है, अभी समझ तो बैकअप गया। हम्म, बैकअप फॉर बैकअप बैकअप के स्टोरेज। लिए ठीक है। और
एक्सेसिबल, डेटा एक्सेसिबल। डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, जो जो बोल रहे हो मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे। डोंट यू थिंक वी विल नीड दिस फॉर प्रोसेसिंग? डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, अभी अभी आते हैं। चलो तुमको ये तो समझ गया डेटा सेंटर क्यों चाहिए मेरे को, व्हाई अ डेटा सेंटर इज इम्पोर्टेंट इन आर एरा, है ना, हमारे प्रोफेशन में डेटा सेंटर क्यों इम्पोर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। अभी मुझे एक बात बताओ, इफ यू योर सेल्फ वॉन्ट्स टू ओन अ डेटा सेंटर, तुम लोगों को खुद को अगर डेटा सेंटर खरीदना है या डालना है, तुमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? लैंड। इंफ्रास्ट्रक्चर। परफेक्ट, ये जो नाम बोला ना जिसने, ये होता है सही टेक्निकल जार्गन। इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने बोला ना, लैंड ही बोलते हैं उसको, बट हमारे लाइन में उसको जार्गन क्या बोलते हैं पता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, लैंड लगेगा, वेरी गुड। व्हाट एल्स? पावर। Network, सॉरी? network, कूलिंग एंड पावर नेटवर्किंग। पावर सप्लाई लगेगा, परफेक्ट, पावर सप्लाई लगेगा। किसी ने बोला सर नेटवर्किंग लगेगी, ठीक है सर, लिख लिया। कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम, यानी कि अभी मैं बोलूँ एसी लगेगा। क्यों पता है? सर्वर रूम में कभी भी कोई गए होगे ना, वहां पे ना एसी में रखा रहता है उनको, मतलब टेम्परेचर मेंटेन किया रखा होता है उनका। क्यों पता है? ये डे इन डे आउट है ना, ये सर्वर, ये डे इन डे आउट ये सर्वर ना आपके चलते रहते हैं, तो ये गर्म हो जाते हैं। हीट हीट होने की वजह से ना इनको कूलिंग सिस्टम भी लगता है, और अंदर ना सर्वर रूम में एसी भी होता है बाय द वे, ठीक है। व्हाट एल्स, और क्या क्या लगेंगे? सोचो यार, खुद का डेटा सेंटर अगर तुमको ये चीज जाननी है खुद की, कहाँ गई ये चीज? racks लगेंगे। सिक्योरिटी। हाँ, रैक्स मतलब मैं बोलूंगा सर्वर्स लगेंगे। हाँ, सिक्योरिटी मतलब वॉचमैन बोल रहे हो क्या? सिक्योरिटी हाँ गार्ड? हाँ, हाँ। तो उसको ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ना एक मैन टर्म पावर। बोला जाता है। हाँ, रिसोर्स। वही आप लोग जो बोल रहे हो ना, एम्प्लॉयज को ही रिसोर्सेज बोला जाता है। मतलब क्या भाई, तू लैंड खरीदेगा, तू करके दिया पावर हुआ सब, सॉरी बोलो। सर पिक्चर में वाटर भी दिया हुआ है, सो मे बी वो नीडेड है। वाटर सप्लाई, बहुत बढ़िया। वाटर सप्लाई इज डेफिनेटली नीडेड मैन। बढ़िया, तुमको क्या लगता है? ये सब चीजें लग गई, और कुछ चीजें तुम लोग भूल रहे हो इधर। मुझे एक बात बताओ, वहाँ कनेक्टिविटी जो पे रहेगी ना, कनेक्टिविटी, अभी तुम्हारे फोन की जो कनेक्टिविटी है दैट इज हार्डली, अभी जैसे मैंने प्लान लिया एयर फाइबर का, सो माई कनेक्टिविटी इज 100 Mbps, है ना, bandwidth, बैंडविड्थ के लिए। तो तुम लोगों को क्या लगता है डेटा सेंटर की जो कनेक्टिविटी है वो भी क्या 100 Mbps 200 Mbps होती है? ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो लोग, वो लोग फॉर डेटा नो। ट्रांसफर क्या यूज नहीं, करते हैं फिर? No. फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक नहीं यूज करते हैं दोस्त, दे यूज लीज लाइन, लीज लाइन नेटवर्क यूज करते हैं वो। एंड ट्रस्ट मी, दिस लीज लाइन नेटवर्क इज मोर देन ऑफ 100 Gbps की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या बात कर रहा हूँ? 100 Gbps। क्यों? whenever you open a flipkart.com का वेबसाइट, whenever you go and hit a netflix.com का वेबसाइट, तुमने कभी वो वेबसाइट को डाउन जाते हुए देखा है? अनलेस इट इज योर नेटवर्क इशू, तुम लोगों ने कभी वो वेबसाइट को स्लो होते हुए देखा है? नहीं, नो, राइट, व्हाई? द रीजन इज बिकॉज वो एंड यूजर ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में वो वेबसाइट और एप्लीकेशन एक्सेसिबल है, so they cannot afford to have this 100 Mbps का प्लान लाइक वी डू, कि जस्ट 12 बजे के बाद नेटफ्लिक्स चला लिया, है ना, किसी को कुछ रील वील भेज दी, कुछ अपना टाइम पास कर लिया और सो गए, वैसा नहीं। 24/7 उनका एप्लीकेशन और वेबसाइट ग्लोबली चल रहा है, दे नीड अ लीज लाइन नेटवर्क। और उसकी स्पीड कितनी होती है पता है? 100 Gbps। आई हैव रिसेंटली रेड आर्टिकल अ कपल ऑफ डेज बैक, टोक्यो में ना टीबी पर सेकंड की वेबसाइट को भी उन लोगों ने, मतलब एप्लीकेशन को, ये लीज लाइन पे टेस्ट कर दिया, पता है? कैन यू इमेजिन हाउ एडवांस वी आर नाउ? जीबीपीएस तो छोड़ो यार, टीबीपीएस तक पहुंच गए हैं लोग। एंड जापान, यू नो, इट इज अ डैम हाई, क्या बोलेंगे, कंट्री इन टेक्नोलॉजी। अभी मुझे एक बात बताओ, यस, क्वेश्चंस कुछ? ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, इफ यू हैव टू ओन योर ओन डेटा सेंटर, अगर तुमको खुद का डेटा सेंटर चालू करना है, विल बी नीडिंग योर ओन इंफ्रा, पावर सप्लाई देखो, नेटवर्किंग देखो, जो सर्वर तुम डालने वाले हो उसका एसी मेंटेन करो, अलग अलग रिसोर्सेज लगेगी मेरे को, पानी चेक करने के लिए, पता नहीं, मेंटेनेंस के लिए, वाटर सप्लाई लगेगा मेरे को, लीज लाइन लगेगा। डोंट यू थिंक दिस एंटायर प्रोसेस इज
टाइम कंज्यूमिंग, Yes, right. टाइम कंज्यूमिंग है Cost. कि नहीं है मेरा? कॉस्ट जाएगा वो Yes. तो अलग, अभी कॉस्टिंग समझेंगे तो इधर आओ। एक एक करके समझते हैं। तो ना क्लाउड के पहले जो सबसे सबसे ट्रेडिशनल और पहली टेक्नोलॉजी है ना, वो क्या थी मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे। इसको पिन करके रख देते हैं यहाँ पे। हुआ नहीं क्या? Where is that guy? Shape. अभी लाइन बाय लाइन समझेंगे हम लोग, ठीक है? अभी मान लो ये एक मेरा है डेटा सेंटर 1, ठीक है? दिस इज माय फर्स्ट डेटा सेंटर। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इसको है ना, इसको ऑर्गेनाइजेशन में पहले जब इनिशियली जब क्लाउड पिक्चर में नहीं था ना, तो इस पे काम होता था। डू यू हैव यू एवर हर्ड इट कि व्हाट इज बेयर मेटल? किसी ने सुना है कभी कि बेयर मेटल क्या होता है? No, sir. No. ठीक है, तो आज सुन लो। क्लाउड के पहले ना कंपनीज यूज टू वर्क ऑन बेयर मेटल। अब ना हम नॉर्मल इसके चैलेंजेस देखेंगे। तुमको तो बेयर मेटल मतलब क्या? बेयर मेटल मतलब ये जो हमने देखा ना, बस ये हमारा बेयर मेटल है। क्या है कि मेरे पास में एक डेटा सेंटर है। क्लाउड के पहले भी ना दोस्त डेटा सेंटर हुआ करते थे, होते थे। क्यों पता है दोस्त? मेरे को स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए रहेगा ना। क्लाउड के पहले भी मेरे जो एप्लीकेशन होस्टेड होते थे कहीं ना कहीं बिना क्लाउड के ही होते थे ना। वो बैकअप तब भी होता था, एक्सेस में डेटा को तब भी कर पाता था, प्रोसेसिंग मेरी तब भी होती थी, सिक्योरिटी मेरी तब भी होती थी, है ना कहीं तो होता होगा ही। तो दैट इज माई बेयर मेटल एनवायरनमेंट। अभी क्लाउड पूरा दिमाग में से निकाल दो फॉर सम टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, ये बेयर मेटल एनवायरनमेंट में जितना कुछ हमने अभी डिस्कस किया है, नोट डाउन किया है, ये बेयर मेटल एनवायरनमेंट के चैलेंजेस क्या क्या है? अगर मेरे को मेरा एक डेटा सेंटर ओपन करना है, ठीक है, उसकी जरूरत ये है, और उसके लिए मेरे को इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, आई नीड दीज थिंग्स, देन व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मेजर चैलेंजेस इन अ बेयर मेटल बेस्ड एनवायरनमेंट? Cost. बढ़िया है भाई, बढ़िया है। किसी ने बोला यहाँ पे मेरे को केपेक्स। इधर मैं और एक चीज लिख लेता हूँ केपेक्स के साथ, विच इज ओपेक्स। किसी को पता है व्हाट इज केपेक्स एंड ओपेक्स? बहुत अच्छा चैलेंज हाईलाइट किया है वैसे किसी ने। Capital expenditure operational. देखो Initially. वैसे ही तुम लोगों ने थियोरेटिकल डेफिनेटरी आंसर दे दिया ना मेरे को, टेक्स्ट बुक ज्ञान। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसका मतलब है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। आई डोंट रियली एंटरटेन थियोरेटिकल आंसर, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बोलो। व्हाट डू आई मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? कोई प्रोजेक्ट न्यू चालू, कॉस्टली इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कर सकते हैं। और जब प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाए, जहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाए ना, तभी ओपेक्स मिल जाता है, मतलब ओके, ऑपरेशन मिल मतलब जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है बेसिकली, राइट? तो लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू गाइस। तो देखो आई गिव यू एन एग्जांपल, उसमें समझ जाएगा व्हाट इज केपेक्स एंड ओपेक्स। सो लॉन्ग टाइम बैक व्हेन यू वर इन स्कूल, या जब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे तुम्हारे दादाजी या योर फादर फॉर दैट मैटर माइट हैव परचेस्ड अ लैंड, दे माइट हैव बिल्ट एन हाउस फॉर यू, जो घर में तुम अभी खुद का घर बोल के रहते हो, है ना? लॉन्ग टाइम बैक, ईयर्स बैक, दे डिड दिस इन्वेस्टमेंट। क्या किया उन्होंने? प्लॉट खरीदा या फ्लैट खरीदा, घर खरीदा, देन यू एंटर्ड एंड तुम उस घर में आज तक रहने लगे हो, है ना? मोस्ट ऑफ द केस में दिस इज ट्रू। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर घर का तुमको मिला है, दादाजी ने तुमको बना के दे दिया। अब लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हारे फादर की शादी हो गई एंड यू गाइस केम इनटू पिक्चर, यू वेंट देयर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और टाइम बढ़ता गया, तुम लोगों ने वो घर में रिसोर्सेज ऐड किए। रिसोर्सेज यानी कि तुम लोगों ने एसी लगवाया, तुम लोगों ने रेफ्रिजरेटर लगवाया, तुम लोगों ने टीवी लगवाई, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, घर बनाने का जो कॉस्ट था, वो एक टाइम पे आया या बार बार आया? टू परचेस अ लैंड, टू बिल्ड अ वन टाइम, हाउस। वन टाइम। One time. करेक्ट, दिस इज माई वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? देखो, घर तो तुम लोगों ने बना लिया, अब तुम लोगों ने उसमें तुम्हारे फिजिबिलिटी या कन्वीनियंस के हिसाब से एसी बिठवा लिया, रेफ्रिजरेटर ले लिया, अच्छा वाला टीवी ले लिया, एंड यू आर यूजिंग डिफरेंट अप्लायंसेस एट योर होम, है ना, एज पर योर कन्वीनियंस।
अभी तुमको नहीं लगता है जितने ये अप्लायंसेस मैं यूज करूंगा उतना मेरे को पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना मैं Yes. पे करूंगा उतना मेरे को पे करना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, मतलब कि कितना कैपिटल कॉस्ट लगता है मेरे को वो वन टाइम सेटअप के लिए। घर बनाने के लिए एक ही बार में मेरे को प्लॉट खरीदना है, घर बनाना है, आई एम डन। एंड एवरीबडी जो भी मेरे फैमिली मेंबर है मैं सबके लिए घर बनाऊंगा एट वन शॉट। और बाकी का जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, जो जो चीज मैं ऑपरेट करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ, उस हिसाब से मेरे को पैसे भरने। लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल। When I was in school, right, I used to go with the PMT buses. मैं PMT से ही जाता था, मोस्टली बस से ही ट्रैवल करता था। When I cleared my 12th standard, my dad bought me a bike. बोला कि अभी अपग्रेड हो जाओ, यू गो फ्रॉम बाइक। तो आई स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम बाइक। अब बाइक तो उन्होंने मुझे दिला के दी, दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स हो गया मेरा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। बट बाइक में जितना मैं चलाऊंगा उतना मेरे को नहीं लगता है तुमको उतना मेरे को पेट्रोल डालना पड़ेगा, और जितना मैं चलाऊंगा उतना मेरे को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सिमिलरली डेटा सेंटर में ना ये दो वर्ड होते हैं, केपेक्स और ओपेक्स। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको खुद का डेटा सेंटर ओपन करना है, दिस वुड रिक्वायर मिलियंस ऑफ डॉलर्स। क्यों, तुमको क्या लगता है ये एक दो घंटे की जमीन में ये लैंड तुम्हारा चल जाएगा? नहीं। डेटा सेंटर बना लोगे तुम एक दो घंटे की जमीन में, 5 घंटे? दिस नीड एकर्स ऑफ लैंड, it needs a huge power supply, it needs a lease line network, it needs resources to handle the maintenance, security, networking, everything. It needs a lot of server. So ये जो केपेक्स है, केपेक्स, ठीक है, अभी क्लाउड के पहले समझ लो, अगर क्लाउड के पहले अगर तुमको बेयर मेटल एनवायरनमेंट में काम करना होता था ना, ठीक है, तो ये केपेक्स है ना, केपेक्स भी तुमको उठाना पड़ता था, ओपेक्स भी तुमको उठाना पड़ता था। अभी समझो व्हाट इज केपेक्स एंड ओपेक्स। तो दिस वाज अ बिगेस्ट चैलेंज। और क्या लगता है और क्या चैलेंज हो सकता है? देखो केपेक्स एंड ओपेक्स के साथ एक चैलेंज और समझ लिया हमने, मेंटेनेंस एंड कॉस्ट। कि भैया इसको सेटअप करने का जो कॉस्ट आने वाला है ना, दैट इज $1,000,000। और एक आध टाइम एक आध सर्वर भी खराब हो गया तो मेरे को उसको मेंटेन तो करके देना पड़ेगा ना एंड यूजर्स को। तो मेंटेनेंस और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है इसमें। व्हाट एल्स, व्हाट डू यू थिंक वुड बी अ चैलेंज इन बेयर मेटल एनवायरनमेंट? मतलब अगर मेरा खुद का डेटा सेंटर है तो मेरे क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं इसमें? सपोर्ट नहीं यार, अगर मैं खुद का डेटा सेंटर ओन करूंगा ना तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सपोर्ट तो दे दूं, क्योंकि मेरे पास ना अंदर एम्प्लॉयज है काम करने के लिए। हाँ, बट जैसे क्लाउड में सपोर्ट है वैसा सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। बट एक सर बहुत बड़ा लाइसेंस। नो लाइसेंस, अभी वही बोल रहा हूँ, थोड़ा क्लाउड से हट के सोचो, बेयर मेटल के लिए सोचो। अगर तुम्हारा खुद का डेटा Yes. सेंटर है तो क्या चैलेंज आने वाले हैं? तो मेरे को कौन बताएगा? मेरे यहाँ पे रिस्क क्यों लिखा है, वाई आई हैव हाईलाइटेड एंड रोट रिस्क यहाँ पे। Disaster management. अब मुझे ना मेरी एक बात, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे रिस्क क्यों है। अब लेट्स से आई हैव टू पीपल, लेट्स से मेरे पास में आई हैव अरुण, ठीक है, और आई हैव लता। अब मान लो लता जो है ना, बेयर मेटल एनवायरनमेंट लता का होस्टेड है। लता इज फ्रॉम अ फिल्थी रिच बैकग्राउंड, आई होप दैट इज ट्रू। एंड उसने ना खुद का उन्होंने डेटा सेंटर चालू किया है ना, ये सारी जो सेटअप वेटअप है उन्होंने सब कर लिया, केपेक्स ओपेक्स देख लिया। अब अरुण आता है लता के पास में फॉर अ बेयर मेटल एनवायरनमेंट, एंड अरुण बोलता है मेरे पास एप्लीकेशन एक फ्लिपकार्ट नाम का, इनिशियली मैं उसको चालू कर रहा हूँ, अभी मेरे को होस्ट करना है आपके डेटा सेंटर पे। क्योंकि एट द एंड एप्लीकेशन किस पे रन करता है गाइस? एप्लीकेशन रन्स ऑन टॉप ऑफ व्हाट? इट रन्स ऑन टॉप ऑफ सर्वर। सर्वर कहाँ पे मेरा डिप्लॉय होता है? सर्वर देखो मैं ऊपर एग्जांपल में होता है नोड पे, नोड कहाँ पे होता है? क्लस्टर पे, क्लस्टर कहाँ पे होता है? डेटा सेंटर पे। तो अल्टीमेटली मेरा एप्लीकेशन जाने कहाँ पे वाला है? अगेन इट विल गो Data. इनटू अ डेटा सेंटर। तो मान लो लता ने सब कुछ कर लिया, सारा कुछ सेटअप कर लिया, सब हो गया, अभी लैंड करना है उसको, मतलब ना ये सर्वर बेसिकली उसको रेंट आउट करने हैं फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। सो अरुण इज वन ऑफ द कस्टमर हु इज डेवलपिंग फ्लिपकार्ट या अमेजोन का वेबसाइट है ना, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट या एप्लीकेशन वो डेवलप कर रहा है इनिशियल फेज में, बीटा फेज में। तो एप्लीकेशन की ना बहुत फेज होती है, बीटा पहले होती है, अल्फा फिर होती है बीटा, फिर होती है स्टेबल, फिर होती है फाइनल, फिर होती है रिलीज, फिर होती है ऑब्सोलीट। ये हम देखने वाले हैं ड्यूरिंग डेवऑप्स का CI/CD के एप्लीकेशन के कौन से फेज होते हैं। सो लेट्स नॉट टच बेस दैट। अभी मान लो इनिशियली जो फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन यूज हुई ना, तुमको क्या लगता है अभी जितने बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, जब वो चालू हुआ था तब भी उतने ही यूजर्स थे क्या? देखो नहीं। इनिशियली
इनिशियली जब भी कोई एप्लीकेशन होता है उसको मेच्योर होने के लिए टाइम जाता है। तो अरुण ने क्या बोला पता है लता को, आई वुड नीड दिस 3 नोड फॉर माई एप्लीकेशन होस्टिंग। मेरे को ना ये 3 नोड चाहिए। अब हो सकता है कि इनमें से मैं कुछ डेटाबेस एज अ डेटाबेस यूज कर लूँ, इसमें से हो सकता है मैं फ्रंट एंड के लिए यूज कर लूँ, इसमें से होता है मैं बैक एंड के लिए यूज कर लूँ, है ना। बट अभी के लिए मेरे को 3 नोड की ही जरूरत है आपके डेटा सेंटर पे से। तो लता ने बोला ठीक है चलो आप 3 नोड ले लो, दैट इज नॉट एन इशू। नाउ 6 मंथ्स 1 ईयर डाउन द लाइन, जैसे ही अरुण की फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन मेच्योर होनी चालू हुई, जैसे ही एंड यूजर्स बढ़ना चालू हुए, तो क्या लगेगा अरुण को, क्या लगेगा जैसे ही उसका एप्लीकेशन ग्रो करेगा? स्केलिंग और बहुत कैसे बढ़िया। डिवाइड होंगे उसको? सर्वर ऐड करना। मतलब बेसिकली अरुण को ना और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है। मतलब क्या, प्रोसेसिंग पावर बढ़ गया, स्टोरेज अरुण को ज्यादा लगने वाला है अभी, है ना, मेमोरी ज्यादा लगने वाली है। और उसके वेबसाइट की, अभी मान लो पहला अरुण ने चालू किया था इंडिया से। अब जब इंडिया में इसकी सक्सेस हो गई ना फ्लिपकार्ट की, तो अरुण ने सोचा क्यों ना इसको ग्लोबली लॉन्च किया जाए। तुमको क्या लगता है सिर्फ 3 सर्वर में या 3 रैक में या 3 नोड में अरुण का ग्लोबली काम बन जाएगा? नहीं, नहीं। राइट। तो अरुण ने लता को बोला कि लता एक काम करो, मुझे ना सारे और ये पूरा जितना क्लस्टर है ना आपका, ये पर्टिकुलर डेटा सेंटर है, ये पूरा दे दो। लता ने बोला चलो ठीक है मैं दे देती हूँ। व्हाट इफ लेट्स से वन फाइन डे अरुण का ना लता के डेटा सेंटर में ना कुछ ड्यू टू सम रीजंस आग लग गई, और अरुण के ना ये 2 नोड जल गए। क्या होगा, अरुण के ये 2 नोड जल गए। अब मान लो यूजुअली ना क्या होता है ड्यूरिंग द, इंडिया इज अ फेस्टिव बेस्ड कंट्री, राइट। सो लेट्स से देयर इज अ फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन। मुझे पता है ना बहुत से लोगों ने बहुत सी लड़कियों को बहन बनाया होता है उस दिन पे। तो तुम लोग रक्षाबंधन में अपनी पर्टिकुलर बहनों के लिए कुछ ना कुछ आइटम्स ना कार्ट में डालते जा रहे हो टू परचेज इट। लेट्स से वो जो कार्ट में तुमने डिटेल्स डाली थी वो ये वाले सर्वर पे स्टोर थी कहीं ना कहीं, और ये सर्वर ही मेरा जल गया, ये नोड ही पूरा इनफैक्ट जल गया। मेरा डेटा रहने वाला है कि जाने वाला है? जाने वाला है। फुल ठीक क्रैश। है, फुल क्रैश। अब ना डेटा सेंटर में एक साथ में मान लो 3 नोड पे आग लग गई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा कनेक्शन इस वाले सर्वर से कनेक्टेड है, मान लो ये वाले सर्वर पे मेरा कनेक्शन राउटेड है, अगर मैं flipkart.com चलता हूँ और ये मेरा नोड ही जल गया, मेरे को फ्लिपकार्ट की वेबसाइट दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो इसमें अरुण के लिए क्या हुआ पता है, इसमें अरुण के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हुआ। क्यों रिस्क हुआ पता है? इधर हाईलाइट करता हूँ मैं, इधर रिस्क क्यों हुआ उसको पता है। इधर हो गया मेरा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना, तो मेरी एप्लीकेशन की तो धज्जियां उड़ जाएगी। और सबसे बड़ा रिस्क है इसमें डेटा लॉस। अभी एक बंदे ने ना यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है राहुल ने, स्केलिंग नाम का। उसको समझते हैं अभी हम ऑन प्रीमाइसेस में। बेयर मेटल क्लियर है क्या, कि कंपनीज में जब बेयर मेटल होता था तो चैलेंजेस क्या होते थे? केपेक्स एंड ओपेक्स होता था, मेंटेनेंस एंड कॉस्ट होता था, रिस्क होता था और डेटा लॉस होता था। बेयर मेटल समझा, अगर खुद का डेटा सेंटर है मेरे पास, और खुद का डेटा सेंटर मतलब क्या, अगर एप्लीकेशन मेरे को होस्ट करने तो डेटा सेंटर पे ही होस्ट करने हैं। और अभी हमने एग्जांपल में क्या समझा, वही एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे। इनफैक्ट लता का डेटा सेंटर है, बिकॉज लता इज फ्रॉम अ फिल्थी रिच बैकग्राउंड, है ना। ये असम्पशन है मेरा, बट आई होप दैट इज ट्रू। और अरुण को अपने जो एप्लीकेशन जो डिप्लॉय किया है अरुण ने, वो उनके डेटा सेंटर में किया है। वो क्या क्या चैलेंज आएंगे, तो ये चैलेंज है ना, ये चैलेंज, अभी दूसरा चैलेंज है ना स्केलेबिलिटी का भी, यहाँ पे उसको टच बेस करेंगे ऑन प्रीमाइसेस में। बट ये चैलेंज ना लता को समझ गया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे अरुण का बिजनेस ग्रो करने लगा, अब ये इशू हुआ, अभी मुझे एक बात बताओ, आग लग गई, जो भी प्रॉब्लम हो गया, लता को है ना एक चीज समझ में आ गई। अभी मान लो लता के पास जो इन्वेस्टमेंट था, लता ने लोन लेके या ड्यू टू सम, उसने कुछ तिकड़म बिठाया और उसने एक डेटा सेंटर चालू कर दिया। डू यू थिंक इट इज फिजिबल फॉर हर टू ओपन अ न्यू डेटा सेंटर? अभी मान लो अरुण जैसा एक कस्टमर है लता के पास, है ना, जिसकी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है। डोंट यू थिंक लता माइट हैव अदर कस्टमर्स फॉर अदर एप्लीकेशंस? अभी मान लो अरुण का बिजनेस ना और तेजी से बढ़ रहा है, इट इज ग्रोइंग लाइक हेल। जैसे ही उसने ग्लोबली चालू किया, तुमको नहीं लगता उसको और सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी और नोड्स की जरूरत पड़ेगी? ही वुड रिक्वायर मोर क्लस्टर्स। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, लता के पास तो ये एक डेटा सेंटर था, लता ने पहले सोचा नहीं था कि उसका बिजनेस इतना ग्रो करेगा। डू यू थिंक इट इज वेरी मच फिजिबल फॉर लता, अरुण को जब जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली वो एक जाके वापस से पूरा एक खुद का डेटा सेंटर बना के लैंड खरीदे, पावर सप्लाई ले, नेटवर्किंग करे, सर्वर्स ले, उसमें रिसोर्सेज डाले? डू यू थिंक दैट इज वेरी मच फिजिबल फॉर लता? नो। No. तो उसके लिए ना ऑर्गेनाइजेशन ने एक तोड़ क्या निकाला पता है? उसके लिए उन लोगों ने
और एक चीज निकाली, आई थिंक आई एम 100% श्योर कि ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑन प्रेम, ऑन Yes. प्रेमाइसिस डेटा सेंटर। अब मुझे बोलो ऑन प्रेम होता क्या है, इसमें भी चैलेंजेस है वैसे दोस्त, और इसके भी चैलेंजेस हम देखने वाले हैं। क्या होता है ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर, बताओ। इसको इसको वैसे ना, इसका और एक वर्ड है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, इन हाउस डेटा सेंटर भी बोलते हैं उसको। क्लाउड आने के पहले ना ये दो चीजें बहुत चलती थी, इनफैक्ट आज भी चलती है। अगर आपको ना ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बैंकिंग या इंश्योरेंस बेस्ड प्रोजेक्ट अगर मिल जाए ना, तो समझ लेना आपको मोस्टली ऑन प्रीमाइसेस पे ही काम रहेगा। नोबडी विल लेट क्लाउड कम इनटू पिक्चर फॉर अ बैंकिंग, और हाँ नोबडी विल लाइक, जो भी बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले क्लाइंट्स है ना ऑर्गेनाइजेशन में, मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स आर ऑन प्रीमाइसेस। देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन, वो आगे हम डिस्कस करेंगे वाइल डूइंग क्यूबरनेटिस। तो अभी मुझे बात बताओ, ये जो ऑन प्रीमाइसेस इन हाउस डेटाबेस है ना, इसका एक एग्जांपल दो। तुम लोगों ने बोला है, तुम लोगों ने सुना है, देखा है, तो बताओ। गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट। यूएस गवर्नमेंट के पास तो यार खुद का डेटा सेंटर भी होता है। मैं सबसे बेसिक एग्जांपल देता हूँ इसका। हाउ मेनी ऑफ यू आर वर्किंग, मतलब कोई हो सकता है टेक सपोर्ट में हो, कोई हो सकता है बीपीओ में हो। Simon. कॉर्पोरेट का जो फ्लोर है ना, फ्लोर फ्लोर पे गए हो कभी आप? आई एम श्योर Yes. कोई ना। हाँ तो फ्लोर पे ना, फ्लोर तो छोड़ दो यार, अगर आप कोई मॉल में भी जाओगे ना, हर फ्लोर पे ना एक डेडिकेटेड सर्वर रूम रहता है। पता है 400-500 स्क्वायर फीट में ना सर्वर रूम वो लोग बनाते हैं, और वो सर्वर रूम में बहुत सारे सर्वर होते हैं, इंटरकनेक्शन लैन वैन घुसा के वायरिंग वायरिंग लगा के रखी होती है। या तो कोई कंप्यूटर लैब में भी जाओगे ना, एक छोटा सा वो ऐसे बॉक्स बना के ना, थोड़ा सा एसी के अंदर एक सर्वर रूम बना के रखते हैं। डू यू नो व्हाट इज दैट? दैट इज एन Actually, इन हाउस डेटा floor सेंटर। पे है ना तुम होती है, और जो क्या बोलते हैं आईटी होता है वहां पे डीसी होता है, मतलब डेटा सेंटर होता है। एग्जैक्टली Prime- मतलब क्या, मतलब देखो दी होल एजेंडा ऑन प्रेम जिससे मैं समझाने वाला हूँ, लता को अगर पूरा एक बेयर मेटल एनवायरनमेंट खड़ा करना है तो उसके पास चैलेंजेस ये है, और उसका कॉस्टिंग और मेंटेनेंस इतना बड़ा है विथ रिस्क। तो लता ने क्या बोला, इतना ज्यादा तो मेरे को करने की जरूरत नहीं, इसको और एक क्लस्टर चाहिए ना, तो क्यों ना मैं मेरे घर के टेरेस पे डाल दूं एक। ऑन प्रीमाइसिस इज नथिंग बट क्या, इन हाउस भी मैं क्या डालने वाला हूँ, एट द एंड में डेटा सेंटर ही डालने वाला हूँ, राइट। इन हाउस भी मैं चालू करूंगा ना तो डेटा सेंटर ही चालू करूंगा। तो इसने इसके टेरेस पे एक ना डेडिकेटेड रूम बनवा दिया अरुण के लिए, उसने एक छोटा सा डेटा सेंटर चालू कर दिया। ठीक है, अब मान लो जितना बड़ा उसने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेरेस पे बनाया था डेटा सेंटर, अरुण को उसने लैंड कर दिया। मतलब क्या, उसने और एक ऐसा क्लस्टर बनाया था, ठीक है, उसके टेरेस पे। अब अरुण की बिजनेस ना यूएस में भी धूम मचा रही है, मतलब उसका फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन यूएस में भी मजबूत चल रहा है। तो अभी क्या हो गया, अभी वापस उसको रिक्वायरमेंट पड़ गई कि और मेरे को सर्वर चाहिए, आई नीड एवरीथिंग, और मेरे को सर्वर चाहिए, और मेरे को नोड चाहिए, और मेरे को क्लस्टर चाहिए। अब क्या करेगी लता? तो इसमें ना एक बंदे ने एक वर्ड यूज किया है, राहुल ने, कि इसमें एक चैलेंज है सबसे बड़ा। इसमें भी है बाय द वे, वो स्केलेबिलिटी का बेयर मेटल में भी चैलेंज है। स्केलेबिलिटी मतलब क्या, बताओ ये क्या चैलेंज हो सकता है? कभी बहुत ज्यादा लोड बढ़ने के बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब रिसोर्स अवेलेबल नहीं रहते हमारे पास, तो मतलब क्या, बहुत देखो फॉर लता, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर लता, लता के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके कस्टमर्स उसके पास से जाना नहीं चाहिए, राइट। उसने डेटा सेंटर ओपन करने के लिए उसको कितना कॉस्ट लगा होगा। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, व्हेन आई ज्वाइन टेक महिंद्रा एज अ फ्रेशर, मैंने वहाँ पे एक बोर्ड पढ़ा, उनके इनॉग्रेशन का बोर्ड था। कौन कौन है पुणे से यहाँ पे, ऑल आर फ्रॉम पुणे, सर आई मीन एवरीबॉडी। टेक अरे इन टेक महिंद्रा बढ़िया यार, तुम तो मेरे कलीग निकले यार। या आई एम एन एक्स टेक माइटियन। तो टेक महिंद्रा में ना हिंजवाड़ी फेज 3 का जो टेक महिंद्रा है, वहाँ पे ना एक बोर्ड इनॉग्रेशन का लगा हुआ है। वहाँ पे आप जाके अगर पढ़ोगे, दे बॉट द लैंड इन 1996 एंड दे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन इन 1998। अब उस टाइम पे ना पुणे के हिंजवाड़ी लोकेशन में ना उन लोगों को कचरे के भाव में जगह मिल गई होगी लैंड। व्हाट इफ आई टेल यू कि जाओ और वहाँ पे एक डेटा सेंटर ओपन करो आज की तारीख में, तुमको लगता है इज दैट पॉसिबल फॉर अ पर्सन लाइक अस? इम्पॉसिबल सर, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुका है वो लोकेशन का। एग्जैक्टली exactly. तो लता तुमने बहुत अच्छा किया ये जो पहले से डेटा सेंटर ओपन कर लिया ना तुमने। मैं भी तुम्हारे पास से सर्वर्स लैंड करने वाला हूँ ऐसे भी। ऐसे
ठीक है, तो स्केलेबिलिटी का इशू समझने के लिए ना अभी वो समझो, उस टाइम पे ना लैंड की कॉस्ट ज्यादा थी। अब समझो लता ने पहला डेटा सेंटर ओपन किया, 5 साल में ये ग्रो करने लगा। अब 5 साल में तुमको नहीं लगता इन्फ्लेशन, महंगाई, ये हिसाब से लैंड का कॉस्ट बढ़ेगा। तो लता ने एक दिमाग लगाया कि भाई एक काम करते हैं, क्यों मैं बेयर मेटल पे जाऊँ, इंस्टेड में खुद को ऑन प्रीमाइसेस इन हाउस डेटा सेंटर खोलती हूँ और कस्टमर्स को क्लस्टर रेंट पे देना चालू करती हूँ फॉर देयर एप्लीकेशन होस्टिंग। पर उसमें भी एक इशू आया, क्या, स्केलेबिलिटी। कि भैया अगर कस्टमर्स का बिजनेस बढ़ रहा है तो हर बार मैं जाके हर जगह पे डेटा सेंटर तो ओपन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना। जितना इतना तो मेरे पास में प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ भी नहीं रहा है जितना मेरे को करना पड़ रहा है ना। स्केलेबिलिटी का एक इशू हो गया। डोंट यू थिंक कि अगर ये वाले डेटा सेंटर में आग लग सकती है दोस्त, तुमको नहीं लगता है ड्यू टू एनी इशू, बारिश हो गई, कुछ हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, इसके घर के टेरेस के डेटा सेंटर पे भी आग लग सकती है। Yes, पेचे भी नहीं है, हाई अवेलेबिलिटी भी नहीं है। तो हाई अवेलेबिलिटी के पहले ना वो हम ये समझेंगे। बट इसमें और एक चैलेंज क्या है पता है, इसमें एक चैलेंज है ड्यूरेबिलिटी का। जो ये बंदा बोल रहा है ना ड्यूरेबिलिटी अचीव होती है एच से ही, राहुल वेरी गुड। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या, अगर इसके टेरिस पे मेरा डेटा है, डेटा सेंटर है, और एप्लीकेशन जो मेरा फ्लिपकार्ट का उसके टेरिस के ये 2 रैक पे होस्टेड है, मान लो ये रैक ही जल गई, तो कार्ट में जो अपनी बहनों के लिए तुमने ऑर्डर करने के लिए जो सोच रखा है वो कार्ट वाली डिटेल्स तुमको दिखेगी क्या यहाँ पे, खत्म, नहीं, डेटा लॉस हो गया, राइट। तो डेटा की ड्यूरेबिलिटी है क्या मेरे पास में ऑन प्रीमाइसिस में भी? no. नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, देर आर cities in India like Pune, like Hyderabad, like Bangalore, like Chennai, है ना, like नोएडा। अभी नोएडा और गुड़गांव भी अभी रिसेंट में बहुत 5-10 सालों में ग्रो किया है इन लोगों ने। तुमको क्या लगता है व्हाई कंपनीज ओनली टारगेटेड दीज सिटीज? ज्यादातर जो आईटी कंपनीज है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, वो यही सिटीज में क्यों है? डोंट यू थिंक मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? डोंट यू थिंक दिल्ली इज अ बिगेस्ट सिटी एंड इट इज ऑल्सो कैपिटल ऑफ इंडिया? तो वो सिटीज में क्यों नहीं है कंपनीज? वाई मेजोरिटी ऑफ द आईटी सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर इज इन द सिटीज लाइक पुणे, गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, नोएडा? कुछ तो रीजन हो सकता है ना। वायलेंस कम है। वायलेंस कम है? तुमको लगता है दोस्त नोएडा में सच में वायलेंस कम है? हाँ है, वैसे पहले नहीं था वो, दैट इज ट्रू, दैट इज वन ऑफ द पॉइंट। और क्या रीजन हो सकता है? सोचने वाली बात है ना। कितने लोगों को बेचारों को गांव से आना पड़ता है, सीन मेनी पीपल लिविंग इन पुणे जस्ट फॉर जॉब यार, घर फैमिली वगैरह सब छोड़ के, जस्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट दे हैव टू कम टू आवर सिटी। क्या क्या मतलब कंपनी ने क्या उनको सपना आया होगा उस टाइम पे, उनको जीमेल पे कोई किसी का मेल आया होगा कि तू पुणे में ही डाल कंपनी? डोंट यू थिंक दैट इज लॉजिकल? इंडस्ट्री में ना इमोशन से ज्यादा ना लॉजिक काम करती है। तो तुमको पता है दे चेक फॉर राइट हिस्ट्री, पिछले 100 ईयर्स के ना ये लोग राइट हिस्ट्री निकाल के देखते हैं। राइट हिस्ट्री मतलब क्या मालूम है? उस सिटी की, उस पर्टिकुलर जगह की। राइट हिस्ट्री मतलब तुम्हारे कितने सिटी में पिछले 100 साल में दंगे फसाद हुए हैं, तुम्हारे सिटीज में कितने साइक्लोन्स या फिर मैं बोलूंगा सुनामी, नेचुरल कैलामिटीज लाइक दीज थिंग्स हुए हैं। क्यों? अभी जब टेकम ने 1996 में वो जगह खरीदी, 1998 में उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू किया, अप्रोक्स बाय 2000 और 2002 उन लोगों का कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, डेटा सेंटर की अगर हम बात करें, डेटा सेंटर में लता ने बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले, इन्वेस्ट किए, राइट। अगर नेचुरल कैलामिटी वाली अगर ये जगह पे कोई जाके डालती है डेटा सेंटर, वहां पे आ जाता है साइक्लोन, वहां पे आ जाता है सुनामी, इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने वाला है आफ्टर ईयर्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने वाला है, उसको मिलेगा क्या? अगर ये सिटीज में, अभी जैसे पुणे, पुणे में अपने पास में समंदर नहीं है, वी डोंट हैव एनी सी, तो यहाँ पे मोस्टली अपने को वो बाढ़ वगैरह का कंसेप्ट ज्यादा देखने को मिलता नहीं है पुणे में, है ना। क्लाइमेट वगैरह बहुत अच्छा होता है यहाँ का। दैट इज द रीजन कंपनीज प्रेफर्ड सिटीज लाइक पुणे। राइट हिस्ट्री पिछले 100 ईयर्स की देखते हो कि कितने नेचुरल कैलामिटीज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो ये कैपेक्स पड़ता है ना, केपेक्स, ये अपनी सोच के भी बाहर है। दिस इज इन मिलियंस। तो अगर कोई बंदा मिलियंस अपने लगा के अपना खुद का डेटा सेंटर लगा रहा है, तो उसको इतना तो सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए फॉर इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? क्योंकि जब उसका ये स्टेबल रहेगा तभी उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। अंडरस्टूड नाउ क्यों और कैसे कंपनीज, व्हाई कंपनीज ओनली वेंट अहेड एंड ओपन कंपनीज इन सिटीज और ओपन कंपनीज, ओपन डेटा सेंटर्स इन सिटीज लाइक पुणे, हैदराबाद एंड ऑल दैट। अभी मुझे एक बात बताओ,
डेटा की यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी नहीं है। मतलब ना, मेरे को एक वर्ड तुम लोगों से सुनना है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी में मेरे पास क्या आया, डेटा को लेके, एप्लीकेशन को लेके, मेरे बिजनेस को लेके क्या चैलेंज आया सबसे बड़ा बेयर मेटल और ऑन प्रीमाइसेस में? इसको एक वर्ड बोलते हैं यहाँ पे। लेट्स सी हु कैन आंसर इट फॉर मी। क्या इशू आया वो? सबसे मेजर इशू है ये, जिसके वजह से ना कंपनीज माइग्रेटेड टू क्लाउड। क्या इशू होगा वो? Availability. डेटा लॉस। डेटा लॉस हुआ, डेटा अवेलेबल नहीं है, उसके वजह से बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आया मेरे? लॉस ही होगा सर ऑब्वियसली। ना, ये सब मान रहा हूं मैं। सबसे बड़ा एक ना मेजर चैलेंज है जो क्लाउड एड्रेस करता है। कैसे करता है वो देखेंगे। अरुण के बिजनेस के लिए क्या इम्पैक्ट हुआ? कस्टमर लॉस हो अवेबिलिटी। ना, अरुण अरुण का जब सर्वर, मतलब लता का जब सर्वर जल गया, जो डेटा सेंटर में अरुण का एप्लीकेशन होस्टेड है, उसके वजह से अरुण के बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आया? वो वर्ड यूज करो। तुम लोग साइट इज एकदम सही बोल रहे हो। नहीं, तुम लोग एकदम सही बोल रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन में ना इंटरव्यूअर को ऐसे ही तुम लोग सही बोलते हो, लेकिन सही वर्ड यूज नहीं करते हो। दैट इज द रीजन इंटरव्यू फिर क्रैक नहीं होता है। तो वो सही वर्ड सही टाइम पे यूज करना सीखना है। बताओ, बोल सब सही रहे हो, 100% राइट है। एक मैनेज ही नहीं। वर्ड है। हाई अवेलेबिलिटी का तो इशू है यार, बट मैं बोल रहा हूँ अरुण के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो। चलो अरुण तुम बोल दो यार, तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, तुम ही कुछ नहीं बोल रहे हो। ड्यूरेबिलिटी, वो उसका ड्यूरेबिलिटी तो ऑफकोर्स है। अरुण तुम्हारा बिजनेस है, तुम ही बोलोगे अभी। डाउन टाइम हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार, तब से चुप बैठे थे। ये वर्ड छुपा के रखा था कि तुमने कहीं पे? देखो अरुण ने कैसे तुरंत बोल दिया। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस का एग्जांपल दिया ना, तो उसने दिमाग अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लगाया। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर स्केलेबिलिटी नहीं है मेरे पास, डेटा की ड्यूरेबिलिटी नहीं है, डेटा मेरा लॉस हो रहा है, डेटा इज इन रिस्क, अरुण का बिजनेस चालू रहेगा? ये दो जो रैक है ना मेरे, ये जलने के बाद अरुण का जो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन वो चालू रहेगा या उसमें डाउन टाइम आएगा? डाउन टाइम आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा, सॉरी, अमेजोन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? फ्लिपकार्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फ्लिपकार्ट में आपने अपनी बहनों के लिए कुछ कार्ट में ऐड करके रखा होगा, इफ यू नो व्हाट आई मीन, योर सिस्टर्स ऑफ कोर्स, उनके लिए आपने कुछ ऐड करके रखा होगा। फ्लिपकार्ट मेरी चल ही नहीं रही है, चेकआउट पे अटक रहा है, पेमेंट पे अटक रहा है। अब नेक्स्ट टाइम जाके फ्लिपकार्ट और उनका एप्लीकेशन यूज करोगे क्या? क्यों नहीं नहीं। करोगे? डेफिनेटली करोगे आप। पता है कब करोगे? वेर अरुण व्हेन अरुण माइग्रेट्स टू व्हाट? क्लाउड। 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 अरुण ने जब क्लाउड पे लेके गए ना अपनी एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली आप करोगे। अब मुझे आपको बताना है, और आपको मुझे बताना है कि ये लाइन यार सीधी नहीं हो रही है क्या? इसको नीचे करता हूँ। अब मुझे आपने मुझे बताना है कैसे क्लाउड मेरा हैंडल करता है इन वाले इश्यूज को, किस किस रीजन से करता है, बताओ। डेटा लॉस। नहीं, ये सारे चैलेंजेस क्लाउड हैंडल करेगा, बट कैसे करेगा मेरे को वो जानना है। मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। ऑटो स्केलेबिलिटी। ऑटो स्केलेबिलिटी, ठीक है। पहली बात तो ना, एक चीज बोलता हूँ तुम लोगों को, नो डाउन टाइम। क्लाउड है ना, क्लाउड क्लाउड वाला भी डेटा सेंटर यूज करने वाला है। अभी मैंने तुमको जैसे यहाँ पे ना अमेजोन का डेटा सेंटर बताया ना, अब मैं तुमको दूसरा डेटा सेंटर बताता हूँ। तुमको नहीं लगता है कंपनीज लाइक गूगल ने देखा, गूगल का हमने देखा, अमेजोन का भी देखेंगे हम। ये देखो, ये अमेजोन का डेटा सेंटर है। तुमको नहीं लगता ऐसे ही दूसरों का भी अपना इन हाउस डेटा सेंटर रहेगा? एप्पल, अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो एप्पल ने, अमेजोन ने, ये लोगों ने डेटा सेंटर चालू किए हैं, ये सारी चीज उन लोगों ने की है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किए है। तो तुमको नहीं लगता ये चीज जब उन्होंने 2003 में, 2002 में सोची होगी, तो ये चीज नहीं सोची होगी उन लोगों ने कि मेरा डेटा, मेरा बिजनेस नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में इतना बढ़ेगा कि मेरे को बहुत ज्यादा सर्वर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा लैंड खरीदना पड़ेगा। सो अमेजोन बीइंग $1 ट्रिलियन कंपनी, तुमको लगता है क्या इसका एक डेटा सेंटर रहेगा? मान लो अभी लता ने ना पुणे के अंदर एक डेटा सेंटर चालू किया और पुणे में वो लैंड कर रही थी सर्वर्स टू अरुण। अमेजोन वाले ना अपने से बहुत आगे सोचते हैं। उन लोगों ने क्या किया पता है? एक डेटा सेंटर नहीं चालू किया, उन लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ डेटा सेंटर चालू किए। जैसे अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ ना, इंडिया में भी कम से कम 3 से 4 डेटा सेंटर है उनके। हैदराबाद में एक है,
मुंबई में एक है, एग्जांपल पकड़ लो, बैंगलोर में एक है। अब मान लो अगर मेरा डेटा सेंटर का एक रैक, पिछले वाले फिक पे लेके चले जाता हूँ तुम लोगों को, मान लो मेरे एक डेटा सेंटर के एक क्लस्टर का एक रैक ये जल गया है ना, अगर अरुण क्लाउड पे जाता है तो क्लाउड क्या करता है पता है, सिमिलर डेटा सेंटर की कॉपी है ना, सिमिलर डेटा सेंटर बैंगलोर या हैदराबाद में बना के रखता है। मान लो पुणे वाले डेटा सेंटर में आग लग गई और ये वाला रैक जल गया, बट मेरा सेम डेटा और उनका सेम डेटा क्लाउड क्या कर रहे हैं, बैंगलोर वाली लोकेशन पे भी डाल के रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेफ बेजोस को और अमेजोन को पता है कि अरुण का जो एप्लीकेशन है वो ग्लोबली लोग यूज करने वाले हैं। आप चाहे रात के 12 बजे उसको यूज करो, सुबह के 4 बजे यूज करो, या दिन के दोपहर के 12 बजे यूज करो, योर एप्लीकेशन शुड बी एक्सेसिबल 24/7 सिंस इट्स अ ग्लोबल एप्लीकेशन। तो अगर मेरा ये रैक जल भी जाता है, तुमको नहीं लगता है बैंगलोर वाले या हैदराबाद वाले डेटा सेंटर में ऑलरेडी मेरा डेटा इन सर्वर्स पे पड़ा हुआ होगा? क्योंकि मेरे पास में अभी डेटा की कितनी कॉपीज है, कितने डेटा सेंटर में मेरा एप्लीकेशन होस्टेड है, 3। और वो भी ना, मान लो कई दफा ऐसा होता है कि ये वाले क्लस्टर पे, ये नोड पे मेरा डेटा है ना, तो सेम क्लस्टर के ये वाले नोड पे भी मेरा सेम डेटा होगा। तो मान लो अगर ये एक रैक जल गया तो भी मेरा दूसरे रैक पे क्या है, मेरा डेटा ऑलवेज अवेलेबल है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे क्या अचीव कर रहे हैं भाई, देखो बताओ, इससे मेरा डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी डिजा तो इज अ डिफरेंट पॉइंट कि डेटा आपका रिकवर पूरा, नहीं आपका पूरा अगर यही बैठ जाता है ना पूरा सिस्टम, मतलब क्लाउड भी बैठ गया ना आपका। देखो इसमें ना, अच्छा वो पॉइंट ना मैं आने के बाद में इसके एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं पहले। और तुमने जो पॉइंट उठाया ना, बाय द वे अच्छा पॉइंट है, गुड पॉइंट। वो पॉइंट ना एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं 11/9 ड्यूरेबिलिटी क्लाउड देता है। पर अभी जो हमने देखा कि वो किसी ने ना यहाँ पे डाला है कि ये जीरो डाउन टाइम अचीव करता है, कैसे पता है, अवेलेबिलिटी जोन राहुल ने लिखा है। व्हाट डू Right. यू मीन बाय अवेलेबिलिटी जोन? तो राहुल ने एकदम सही पॉइंट किया है। देखो अवेलेबिलिटी जोन मतलब क्या है, ये मेरा ना एक रीजन है, एक अवेलेबिलिटी जोन है मेरा पुणे। भले से मेरा अगर पुणे का रैक या पुणे का डेटा सेंटर जल भी जाता है, तो भी मेरे कस्टमर को है ना, मैं 3 अलग अवेलेबिलिटी जोन में क्या करूंगा, सर्वर्स रेंट पे दे दूंगा। मतलब क्या, पुणे में भी है मेरा डेटा सेंटर, बैंगलोर में भी है मेरा डेटा सेंटर, और हैदराबाद में भी है। तो अगर पुणे का भी जलता है, अब तुम मुझे एक बात बताओ यार, मतलब ना दुनिया की आखिरी चीज, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि तीनों जगह पे एक टाइम पे बाढ़ आ जाए, तीनों जगह पे एक टाइम पे भूकंप आ जाए? देयर इज अ नहीं. नो। पॉसिबिलिटी, बट वो दैट डे ऑफ जजमेंट रहेगा, आखिरत मतलब कयामत वाला दिन रहेगा वो, है ना, उसको हटके सोचो। पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना, पुणे में बैंगलोर में वही लोकेशन पे वही जगह पे तुम लोगों को ना एक टाइम पे आग लग जाए, एक टाइम पे तुम लोगों को डाउन टाइम देखने को मिल जाए। सो दैट इज द रीजन Amazon जो गारंटी देता है ना, 11/9 ये डॉट डॉट डालूंगा, 99.11 बार 9, मतलब 11/9 ड्यूरेबिलिटी देता है आपको। मतलब क्या ये बोल रहा है, 99.9999% मैं क्या दे रहा हूँ आपको, डेटा की ड्यूरेबिलिटी दे रहा हूँ। और व्हाट कॉन्फिडेंटली इतना क्यों बोल रहा है, उसको पता है मैंने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में और मल्टीपल रीजन में कस्टमर का एप्लीकेशन जो है होस्ट करके दिया है। तो तुमको नहीं लगता है मेरा ये चैलेंज सॉल्व हो गया इसमें? क्या स्केलेबिलिटी का कैसे सॉल्व हो रहा है? तो भैया मेरे पास में मल्टीपल, पूरी दुनिया में मेरे डेटा सेंटर्स है। तेरे को कितने चाहिए खाली बोल। अमेजोन पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना, जितने नंबर ऑफ नोड मैं उसको बोलूंगा ना क्यूबरनेटिव्स के टाइम पे, उतने नंबर ऑफ नोड मेरे को चुपचाप फ्री ऑफ कॉस्ट में वो डिप्लॉय करके दे देगा। तुमको नहीं लगता है डेटा की भी ड्यूरेबिलिटी हुई? अब मुझे एक बात बताओ, क्लाउड ने और ये बड़े बड़े चैलेंज मैनेज किया कि नहीं? क्लाउड जब तुम लोग यूज करते हो, केपेक्स तुम लोग देते हो क्या? मतलब तुमने ये डेटा सेंटर खरीदा है क्या क्लाउड वाले केस में? तुम्हारा है क्या ये? किसका है ये? मेरा अमेजोन वालों का। तो तुम लोगों को केपेक्स वाला कॉस्ट पड़ा क्या? नहीं। क्यों ना वाई? क्योंकि क्लाउड है ना, क्लाउड एक प्रिंसिपल पे काम करता है, पे उसको एज यू बोलते गो। हैं पे एज यू गो मॉडल। मतलब क्या, अपना ओपेक्स देना है अपने को खाली। मतलब क्या, जितनी तू बाइक चलाएगा ना उतना ही पेट्रोल डाल, जितनी जरूरत है उतना ही मेंटेनेंस दे। मतलब क्या, पप्पा ने बाइक लेके मेरे को दे दी, पप्पा ने क्लाउड बना के दे दिया, अब जितने रिसोर्सेस तू बाइक जितनी चलाएगा उतना पेट्रोल डाल और यूज कर ले। क्या बोलते हो, बढ़िया है कि नहीं? सारी खिचड़ी ये मेरे को नहीं करना है, मेरा नॉर्मल सा एप्लीकेशन मेरे को डिप्लॉय करना है, तो मेरे को डेटा सेंटर चाहिए क्यों दोस्त? केपेक्स तो ऑलरेडी जेफ बेजोस ने कर लिया, सो वी शुड बी थैंकफुल टू दैट गाय। नाउ अब एच ए बोलता है ना, किसने बोला था मेरे को, एच ए, हाँ, डिजास्टर रिकवरी की बात हुई थी यहाँ पे। देखो अमेजोन वाला भी जो जेफ बेजोस है ना, उसको भी मालूम है कि वो भगवान तो है नहीं,
क्या पता दुनिया की सबसे आखिरी चीज तीनों डेटा सेंटर में मेरे आग लग जाए, है ना। तो भी उसने क्या किया है, 1.1% छोड़ दिया है ना तुम लोगों के लिए। बोला है कि मैं 99.999% ड्यूरेबिलिटी दे रहा हूँ, फिर भी 0.0001% में गारंटी नहीं दे सकता हूँ। पता है क्यों? दिस इज मतलब नेचर क्या है, नेचर इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो इस वाले केस में तुम्हारा डीआर होगा दोस्त। क्या नाम है तुम्हारा जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा मेरे को? अब डीआर क्या होगा? अगर मान लो एक क्लस्टर की प्राइमरी कॉपी मेरी डिजास्टर रिकवरी, मतलब क्या, प्राइमरी पूरा एडब्ल्यूसी बंद हो जाता है, तो डीआर में ये लोग क्या करेंगे, हो सकता है ये लोग एश्योर लेके रख दें। अब हो सकता है एश्योर ने पुणे की जगह पे मुंबई में डेटा सेंटर डाला होगा, या हो सकता है ये लोग ने दूसरे रीजन में, जैसे कि आयरलैंड हो गया, नॉर्थ वर्जीनिया हो गया, यूएस में एक डीआर रीजन इन लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी वाले सिस्टम में काम करता है। प्राइमरी अगर डाउन हुआ तो सेकेंडरी से ये लोग ट्रैफिक सर्व करवाएंगे। अंडरस्टूड? अब क्लाउड और क्या क्या देता है? HA, क्यों मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में मेरा क्लस्टर जो है, एप्लीकेशन जो है होस्टेड रहने वाला है, तो क्लाउड मेरा देता है HA। यहाँ पे अपने को किसका खर्चा आता है? सिर्फ ओपेक्स का। बट अगर इंटरव्यूअर ने पूछा तुमको, देखो जीरो डाउन टाइम भी ये सब कुछ है, अगर इंटरव्यूअर ने पूछा कि व्हाई आर यू यूजिंग क्लाउड, लेट्स से आई एम योर इंटरव्यूअर, बाय द वे सबको समझ गया अभी बेयर मेटल क्या होता है, ऑन प्रीमाइसिस क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, व्हाई वी केम इनटू क्लाउड। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और तुमको आंसर देना है वो, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, नाउ इफ एन इंटरव्यूअर आस्क्स यू कि व्हाई आर यू यूजिंग क्लाउड, व्हाई कंपनीज माइग्रेटेड टू क्लाउड, क्या बोलोगे? एक लाइन का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसे में। Things can be accessible through internet. तो तुमको नहीं लगता है बेयर मेटल इंटरनेट से एक्सेसिबल था? राइट? ऑन डिमांड। Yes. ऑन डिमांड एक On अच्छा वर्ड demand. है, हाँ. बट यहाँ पे भी ड्यू टू, मतलब एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, जब तक उसका एप्लीकेशन इतना ग्रो नहीं किया कि डेटा सेंटर ही लता का फुल हो गया, लता तो इसको सर्वर दे पा रही थी, तो वो भी पॉइंट गए। नेक्स्ट ट्राई करो। High availability. सॉरी, अवेलेबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी तो मेरे पास में फॉर सम टाइम, इसने जब ऑन प्रेमाइसिस पे टेरेस पे खोला था तो इसने अवेलेबल करवा के दे दिया था। अभी तो 2 कॉपी हो गई इसके पास, लता के पास, एक ऑन प्रेमाइसिस उसके घर के टेरेस पे इन हाउस, और एक बेयर मेटल डेटा सेंटर में। देन वाई क्लाउड? सोचो, बोलो, वाई Sir, क्लाउड? all challenges of bare metal बढ़िया है, ऑल चैलेंजेस ऑफ बेयर मेटल are आगे। solved. All premises on premises are solved by the cloud. So we परफेक्ट, ये तो सही बात है, ये तो हमने चैलेंजेस क्लाउड कैसे एड्रेस करता है वो देख लिया। राहुल ने ना एक आंसर दिया है विच इज वेरी बढ़िया। राहुल ने क्या बोला है पता है? एक लाइन में अगर आपके जगह मैं इंटरव्यू दूं ना, सिंपली एक चीज बोलूंगा मैं इसको, क्लाउड इज व्हाट? फुल्ली मैनेज्ड। इधर क्या कर रहे हो आप लोग पता है? इधर क्या कर रहे हो, केपेक्स ओपेक्स भी आपका है, मेंटेनेंस, इधर कोई मेंटेनेंस लग रहा है क्या तुमको? कोई सर्वर खराब हो गया, तुमको जाके डेटा सेंटर में चेंज करना है क्या? बताओ। अभी इधर ना मतलब और एक, मैनेज करने के लिए, राइट? देखो इधर तुमको ना सिर्फ तुम्हारा जो वर्कलोड, तुम लोग जो सर्वर लेने वाले हो ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन और अपने हिसाब से लेके यूज करना है बस। तो क्लाउड क्या फीचर दे रहा है सबसे बड़ा पता है? पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, फुल्ली मैनेज्ड है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ रेडीमेड पड़ा हुआ है, एक सिंगल क्लिक पे ले लो डेटा सेंटर में सर्वर और अपना काम चालू कर दो। अब ना मैं ऑन प्रीमाइसिस का भी तुमको चैलेंज बोलता हूँ। सो व्हाइल आई वाज वर्किंग विद कॉग्निजेंट, I worked there as a big data administrator for more than a year and I handled a US based cloud which was an insurance giant. बहुत बड़ी एक इंश्योरेंस कंपनी है यूएस में, बोया नाम की, वो मेरा कस्टमर था यहाँ पे। सो हमारा जो, मैंने क्या बोला तुम लोगों को, अगर बैंकिंग या इंश्योरेंस ऐसा कोई फाइनेंशियल डोमेन रहेगा ना दोस्त, तो तुम लोग को यहाँ पे काम मिलेगा। किधर? क्लाउड नहीं मिलेगा तुमको, ऑन प्रीमाइसिस मिलेगा। ऑन प्रीमाइसिस में खिचड़ी कैसे होती है आप देख लो। इट वॉज आवर थर्सडे और उनका ना क्रिसमस का टाइम था, तो क्रिसमस के टाइम पे तुमको पता है वहाँ पे बहुत धूम मची हुई होती है, एवरीबडी इज ऑन लीव और बहुत धूमधाम से मनाते हैं ना वो लोग क्रिसमस एंड न्यू ईयर, तो एवरीबडी वाज ऑन दी लीव। अब क्या हुआ, मेरा प्रोडक्शन का ना 10 नोड का क्लस्टर था, 10 में से ना एक नोड मेरी डाउन हो गई, मतलब शायद रैक वगैरह कुछ गर्म हो गया होगा उसका, इट फेल्ड, मेरा वो जो हार्डवेयर था उसका वो फेल हो गया। अब वो हार्डवेयर का मदरबोर्ड या रैम कुछ तो उन लोगों को रिप्लेस करने जाना था। तुमको क्या लगता है ये जो डेटा सेंटर है, ये डेटा सेंटर का लोकेशन वो तुमको बताएंगे क्या? नहीं। क्यों?
सिक्योरिटी। मेरे को एक नॉर्मल एग्जांपल से समझो अभी, सिक्योरिटी रीजंस। कोई कर्नल की बंदी अगर तुम लोगों ने सेट की है, वो कर्नल तुमको उसके आसपास, घर के आसपास के लोकेशन पे भी भटकने देगा क्या? नहीं। क्यों? उसको पता है कि ये बंदे से मेरी बेटी को थोड़ा सा दूर ही रखना पड़ेगा, है ना। अंटिल यू गेट अ जॉब इन डेवऑप्स, ऑफ कोर्स 15-20 लाख का पैकेज ले लो तो बात अलग है, फिर तो अंदर बिठाएगा, चाय वाय पिलाएगा, है ना, अच्छे से सैल्यूट वैल्यूट मार के भेजेगा, अंटिल यू बिकम समथिंग, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। ऐसे ही होता है ना। जो चीज इज्जत उसी से मिलती है, जितना नंबर बड़ा रहेगा ना उतनी इज्जत ज्यादा है। ये हार्श रियलिटी है, नॉट इन एवरी पॉसिबल केस, बट अभी तो हम बड़े हो गए, तुम लोगों को भी पता होगा कि दिस इज द हार्श रियलिटी, कि मोस्ट मेजोरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है। तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना किसी को नहीं पता होता है कि ये डेटा सेंटर जो है ना, डेटा सेंटर ये किधर है। अब जेफ बेजोस की तुमको रिसेंट में अगर 2-3 साल पहले की न्यूज पता होगी, उसकी वाइफ से उसने डाइवोर्स ले लिया। अगर उसको उसकी वाइफ को ये डेटा सेंटर्स का लोकेशन पता होता, तो तुमको तो पता है हाउ टिपिकल वाइफ्स आर, है ना, जाके वो डेटा सेंटर को ही आग लगा लेती, बोलती कि तेरा बिजनेस जाने दे भाड़ में, तूने जो मेरे साथ किया है ना, ले उसका भुगतान तो भुगत अभी। तो ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना लोकेशन किसको नहीं पता होता है। तो तुमको क्या लगता है कॉमन मैन को अंदर जाने देंगे? नो। So there are only technicians like who are Jupyter certified, who are CCNA certified। सिर्फ उन लोगों को ही एंट्री होती है डेटा सेंटर में जाने की। अब ना हमारा जब नोड खराब हुआ, इट वाज अ प्रोडक्शन का नोड, सारी जॉब्स हमारी फेल होना चालू हुई क्योंकि वो नोड पे हमारी जॉब रन कर रही थी। अब ना आई थिंक फ्राइडे या सैटरडे को, उस टाइम पे क्रिसमस थी, वी रेज्ड अ टिकट, हमने चेंज टिकट क्रिएट किया, हमने अप्रूवल ले लिए। अभी ना हमारी तो डिपेंडेंसी बन गई भैया। कैसे बन गई कि वो बंदा, वहां पे 2 बंदे थे, दोनों के दोनों छुट्टी पे थे। अब वो बंदा ना क्योंकि छुट्टी पे था, वो मंडे वापस आने वाला था। तुमको क्या लगता है मंडे तक मैं रुकता? मेरे प्रोडक्शन के जॉब्स तो पूरे फेल होते। ऑप्शन थोड़ी था मेरे पास में। और वो बंदे के पास ही एक्सेस है कि वो अंदर जाए, डेटा सेंटर में जो भी वायर या सर्वर खराब हुआ होगा ये वाले, इसमें वो जाए, उसका जो मदरबोर्ड जो रिप्लेस करना था उसको ये निकाले, मदरबोर्ड दूसरा डाले, फिर हमको यहाँ से उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ती थी। तो हमने क्या किया, एस्केलेट किया। हमने क्लाइंट को बोला कि ऐसा ऐसा सीन है भाई, अभी तुम लोग यूएस में ही बैठे हो, तो अलाइंड समवन फ्रॉम योर टीम, जो भी नेटवर्क की टीम में से तुम लोग के डेटा सेंटर का बंदा है, और उसको जाके बोलो प्लीज मदरबोर्ड चेंज कर दे। तो हमने क्या किया, उसको फिर संडे, हम लोग को 2 दिन लग गए यार, सैटरडे नाइट को हम लोगों ने उसको कैसे तो बुलाया, इवेंट एड इनसाइड, उसने गया, वो मदरबोर्ड चेंज किया, फिर हमने रिबूट वगैरह किया सिस्टम्स को, एंड दैट्स हाउ आई ब्रॉट द सिस्टम बैकअप। तुमको नहीं लगता ये ऑन प्रीमाइसेस में इतनी बड़ी खिचड़ी है? क्लाउड क्या बोल रहा है, अंदर कुछ भी डाउन टाइम हुआ ना, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि मैं 11 9 ड्यूरेबिलिटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं एचए दे रहा हूँ। एचए क्यों दे रहा हूँ? अगर मेरा एक नोड एक रीजन में डाउन भी हो जाता है तो मेरे को एचए मतलब हाईली अवेलेबल करके दे रहा हूँ तेरे को डेटा। क्या दे रहा हूँ? हाईली अवेलेबल करके दे रहा हूँ, ताकि तेरे को जीरो डाउन टाइम आए, ताकि जो डेटा की ड्यूरेबिलिटी है ना ज्यादा से ज्यादा मिल पाए। और तेरे तू सिर्फ उतना ही पे कर जितना तू यूज करने वाला है। तो है कि नहीं मजेदार? तो इसके बाद अगर कोई इंटरव्यूअर ने पूछा कि वाई आर यू यूजिंग क्लाउड, या वाई कंपनीज माइग्रेटेड टू क्लाउड, तो क्या बोलोगे? सिंपल लाइन में, एक लाइन में आंसर है कि भैया इट इज फुल्ली मैनेज्ड, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं उसमें। अंडरस्टूड? अभी 3 टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, जार्गन्स बोलते हैं इसको, मतलब इंडस्ट्री में ना रिक्वायरमेंट में बहुत बारी तुमको ये देखने मिल जाएगा। तुम लोगों ने कभी सुना ये 3 चीज? ये कितने Yes. बजे तक रहेगा? कितने बजे का? कितने बजे, हाँ कितने बजे तक रहेगा? आप बोलोगे तो मैं रात तक ले लेता हूँ, नहीं तो अभी खत्म कर देते हैं। नहीं अच्छा, टुडे टुडे बीइंग मेरा संडे यू हैव प्लान्स, ओके आई नहीं अंडरस्टूड। नहीं, मेरा तो ऑफिस है सर, मेरा तो शिफ्ट है 1:30 बजे से, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रॉब्ली 1 बजे के पहले खत्म कर देंगे। ये ओवरव्यू सेशंस चल रहे हैं हमारे, इसके बाद में और एक सेशन रहेगा EC2 मेरा, फिर आपके क्लाउड और लिनक्स के सेशन होंगे, फिर हम लोग अपना जो मेन मुद्दे वाली बात है डॉकर वगैरह सब डेवऑप्स के सेशन हम चालू करेंगे फिर। ठीक है? ओके। तो क्या है ना, देखो, अगर मैं डायरेक्टली तुमको क्लाउड बताता डायरेक्टली, और ये चैलेंजेस, ये जो भी इश्यूज कंपनीज ने ड्यूरिंग लास्ट 30-40 ईयर्स फेस किए, तो क्लाउड का मजा आज समझ में आता क्या अपने को? हम वैसे ही पढ़ने वाले हैं। आर अप्रोच इज वेरी डिफरेंट। पिछली ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या टूल में क्या ऐसे फ्लॉज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी ने बूम पकड़ी? ये टेक्नोलॉजी ने क्यों बूम पकड़ी? इसका क्या यूज है? इसको कैसे यूज किया जा सकता है? ये सारे ना, मतलब जड़ पता होगी ना, तो कंसेप्चुअली नॉलेज ना बहुत जल्दी क्लियर होता है। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, बुक्स की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में आंसर समझ गए। क्यों? क्योंकि ये इतनी सारी खिचड़ी में 1 घंटा, ये क्लाउड समझने के लिए 1 घंटे की खिचड़ी पूरी समझनी पड़ी पहले, है ना। दैट इज द वे वी विल लर्न।
in the next sessions as well. So now you guys tell me, किसी ने ये टर्मिनोलॉजी सुनी है क्या, आस पास और सास? Yes. Yes, क्या है yes. ये? Infrastructure Infrastructure as a as service. Service. बढ़िया यार, बढ़िया, पब्लिक बहुत बढ़िया है ये बैच की, सबको सब कुछ पता है, तो मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मेरा तो काम है यार, मेरे को करना ही पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। दूसरी है मेरी, क्या है Platform. दूसरी? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म एज अ, अभी ना मेरे को खाली डेफिनेशन मत दो, सॉफ्टवेयर एज अ Software. सर्विस। अभी मेरे को ना ये इतना ही पता तीनों है। नहीं पता। अरे पहले या हथियार डाल दिए हो, ऐसे नहीं करना चाहिए नहीं, ना। आप बोले ना इसलिए। तो मैं तुम लोगों को ना थ्रू आउट द कोर्स ये भी बताऊंगा कि हथियार कब डालने हैं, कब नहीं डालने। देखो, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, राइट, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हमको सब कुछ तो नहीं आए, और आजकल के इंटरव्यूअर ना बहुत शाने हो गए, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि सारा कुछ हमको आए। तो उसको भी बताने का कि भाई तू भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, बट वो बताने का तरीका क्या होता है। देखो, एक चीज है कि मैं पैर से किसी को जलील करूं, और एक चीज है कि मैं दिमाग से, एक है कि मैं बदला लूं, और एक है मैं कि उसको थप्पड़ मार के या उसको जान से मार के बदला लूं। ये अपने हाथ में होता है ना। तो प्यार वाली चीज में ना बहुत ताकत है, बट इंडस्ट्री में ना ये प्यार वाली भाषा जो होती है ना, उसको बोलते हैं जार्गन्स। मतलब मना भी करो, बट सेफ वर्ड पे होके मना करो कि भाई मेरे को नहीं आता है। तो वो नहीं आता है, वो क्या नहीं आता है, वो कैसे कब बोलना है ना। अब तुम लोग तो 5 महीने हो मेरे साथ, मैं 5 महीने में सब कुछ सिखा दूंगा, डोंट वरी। अब ना एग्जाम्पल पे आओ अपने। बेयर मेटल वाला एग्जांपल है ना, मेरे बेयर मेटल वाला एग्जांपल, ये बन गया मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। किसी ने एग्जांपल पूछा ना आस पास और सास के, तो यही बोलना है तुमको, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसके एग्जांपल दिखाऊंगा अभी वैसे, ठीक है। और ये तीसरा वाला क्या बन जाएगा क्लाउड मेरा, व्हाट डू यू थिंक? एग्जांपल कंसीडर करो, अभी कंसीडर करो। अब मैं लाइव इसके एग्जांपल तुम लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल जो एग्जांपल है आस पास और सास की, ये जैसे अपने टिपिकल लड़कियों के मामले में जो बहू फेमस होती है ना, सॉरी सास फेमस होती है, ये वही सास है, बट ये अपनी आईटी की सास है। तो सबसे ज्यादा कौन चल रहा है आज के तारीख में? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जैसे घरों में सास चलती है। अब तुम लोगों को एक मुझे बात बताना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का कोई एग्जाम्पल दो लाइव। तो हमने क्योंकि क्लाउड वाले बेयर मेटल पे देखा ना, तो AWS, एज्योर हुआ, जी और GCP। क्यों पता है? ये डेटा सेंटर तीनों के पास है कि नहीं है, केपेक्स उन्होंने डाला है कि नहीं डाला है? डाला है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने क्या किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को एज अ सर्विस तुमको लेंड कर रहे हैं, मतलब पे एज यू गो मॉडल पे रेंट पे दे रहे हैं। इजंट दैट ट्रू गाइस? Amazon ने खुद का डेटा सेंटर डाला, वैसे एज्योर का भी क्लाउड है, वैसे GCP का भी क्लाउड है। तो ये तो उन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का बनाया, और वो कस्टमर्स को एज अ सर्विस उसको लैंड कर रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ना बहुत तगड़ा ये एग्जाम्पल मेरा जाता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या एग्जाम्पल रहेगा? एक ना रेड हैट का प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं ओपन शिफ्ट, नाम सुना होगा तुम लोगों ने। एंटरप्राइज ग्रेड क्यूबरनेट्स का क्लस्टर होता है ये, सुना है चैट नाम? जीपीटी। नहीं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैट जीपीटी, भाई ये ना नाम हमेशा याद रखो, चैट जीपीटी यूज करना सीख लो। मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ना बड़ी बड़ी पाइपलाइन ये बंदे से, पिछले 1 साल में ना इसने अपनी लाइफ बहुत आसान भी की है, ठीक है, बट बहुत सारी जॉब्स पे खतरा भी आया है इसकी वजह से। जिसको पता है नहीं कैसे यूज करना है, बस तुम्हारा तो अंदर बहुत अच्छे से वेलकम। जिसको भी डाउट होगा ना कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको नहीं आती है, सर पाइथन सीखना है, सर स्क्रिप्टिंग सीखना है, तो लेट मी टेल यू गाइस, इवन आई डो नॉट नो अ सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये बंदा ना, ये चैट जीपीटी नाम का टूल, ये लैम्डा के फंक्शंस भी इसने मेरे को बना के दिए, इसने मेरे को शेल स्क्रिप्ट बना के दिए, इसने मेरे को पाइथन स्क्रिप्ट बना के दिए, इसने मेरे को कोड्स लिख के दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, टेराफॉर्म के, फ्लक्स के, YAML फाइल्स लिख के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये क्या करता है, प्लेटफॉर्म दे रहा है आपको चैट जीपीटी, और उसको एज अ सर्विस आप यूज कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या एग्जांपल दोगे? आउटलुक, जीमेल, नेटफ्लिक्स, प्राइम। बढ़िया है गुरु, नेटफ्लिक्स, स्विगी, जोमेटो। क्यों? एक क्लिक करो, सब कुछ आपके पास में है। जैसे नेटफ्लिक्स की जब आप मूवी देखते हो, जैसे आई वाज वाचिंग मिर्जापुर यस्टरडे, लास्ट नाइट, क्या मैं स्क्रिप्ट राइटर था, क्या मैं प्रोड्यूसर था, क्या मैं डायरेक्टर था, जो मेरे को नेटफ्लिक्स पे उसने पिक्चर, या प्राइम पे उसने मेरे को पिक्चर देखने दे दी, या सीरीज देखने दे दी? इसमें से कुछ भी नहीं हो ना, मैं एक एंड यूजर हूँ, बट एक सिंगल क्लिक पे मेरे को सब कुछ देखने को मिल गया। वैसे ही स्विगी और जोमेटो क्या, अब मुझे एक बात बताओ, आज संडे है ना, सबके अपने बंदे और बंदियों के साथ प्लान्स रहेंगे, राइट, इवनिंग में
आफ्टरनून में हो सकता है सबके साथ, मेजोरिटी ऑफ द केस में होता है ऐसे। अब मान लो आपकी बंदी को कुछ खाने का दिल कर रहा है, तो आप क्या करोगे? खेती करोगे, फसल उगाओगे, फसल काटोगे, और फिर बोलोगे अभी बनाने का भी है और खाने का भी है अपने को। ऐसे बोलोगे उसको कि आप सिंपली स्विगी और जोमेटो से एक सिंगल क्लिक में रेस्टोरेंट चूज करोगे, पेमेंट और करोगे, और डोर स्टेप पे आपके खाना तैयार है। आपको ये पसंद है या ये खेती बाड़ी पसंद है, बताओ? Of course, you सिंगल will क्लिक। go for software as a service. Now you understood why cloud is in boom. सारा कुछ तुमको सिंगल क्लिक पे दे रहा है। वहां पे बंदियां खुश होती है, यहाँ पे कस्टमर्स और यूजर्स खुश होते हैं। अंडरस्टूड नाउ वाई क्लाउड, व्हाट इज क्लाउड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस किसको बोलते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस किसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस किसको बोलते हैं, डेटा सेंटर क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम लोगों का होना चाहिए कि सर क्लाउड तो हम सीख रहे हैं, बट मेजोरिटीली हम लोग ना AWS क्लाउड ही क्यों सीख रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है? शेयर्स ज्यादा एडब्ल्यूएस के फर्स्ट मार्केट फर्स्ट कॉस्ट क्लाउड। तो यार एज्योर की भी मार्केट शेयर तगड़ी है बहुत। में। तो अभी तुमको समझा कि क्लाउड सिंस इट गॉट डेवलप्ड इन 2003 में जब इन लोगों ने पहला डेटा सेंटर बनाया अमेजोन वालों ने, अभी समझ रहे हैं कि 20 साल बाद भी इतना बूम में क्यों है, कि भाई ये सारे चैलेंजेस ये अपनी लाइफ आसान बनाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो चीज आपकी लाइफ आसान बनाती है आपको वो पसंद आएगी, या जिसमें आपको स्ट्रगल ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, वो पसंद आएगा? बताओ। डायरेक्ट खाना मंगा के खाना पसंद है, खेती करके उगा के फसल काट के खाना खुद के हाथ से बना के खाना पसंद है? बताओ। ऑफ कोर्स यही पसंद आएगा आपको, नेटफ्लिक्स ही पसंद आएगा। क्या बोलते हो? पहले पहले तो हमारे जब छोटे थे, स्कूल व्हेन वी वर इन स्कूल, लिटरली वो जो टीवी की एड चलती ना, जी सिनेमा, सोनी मैक्स, ये हमारी अगर कोई फेवरेट मूवी लगती थी तो हम वो दिन पे वो टाइम याद रखते थे, राइट, वो मूवी देखने के लिए। वो भी एक ही चांस मिलेगा, अगर लाइट गई तो खत्म, क्योंकि रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं था। अभी एडवांस कितनी हो रही है दुनिया, देखो नेटफ्लिक्स पे जब भी आओ तुम, तब भी तुमको डेटा अवेलेबल है ना? इट डिपेंड्स कि तुम क्या देख रहे हो उस पर, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो ये प्लेटफॉर्म्स को। सो अंडरस्टूड, एवरीबडी इज क्लियर। मैंने क्वेश्चन पूछा AWS क्लाउड क्यों सीख रहे हैं हम? एक तो चीज है कि ये 200 से ज्यादा कंट्रीज में है। दूसरी चीज आप लोगों ने खुद बोल दी कि सर इसका मार्केट शेयर ज्यादा है। तीसरी टेक्निकल चीज ये है, ये ISO 27 के सर्टिफाइड क्लाउड प्रोवाइडर है। क्या है इसकी वजह से ना, कस्टमर ज्यादा इसको ट्रस्ट करते हैं। बट अभी मेरे को ना एक चीज जो मैंने डेमो में भी बोली, मान लो हमने काम किया AWS पे थ्रू आउट, हम AWS भी दिखाने वाले, एज्योर भी सीखने वाले हैं वैसे, बट हमने काम किया मेजोरिटीली AWS। तो आप लोग बोलोगे कि मैं AWS पे बताऊंगा। अब कंपनीज को चाहिए एज्योर, क्यों कंपनी तुमको हायर करेगी? अब मान लो अगर तुमको एक्टिव आती है, तुम जुपिटर DO वगैरह चला सकते हो कि नहीं चला सकते हो? यस, चला सकते हैं। तो बस कंपनी को अगर जुपिटर चाहिए और तुम बोलोगे मेरे को एक्टिव आती है, तो तुम लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि भैया ये जुपिटर है, खाली क्लच ब्रेक और लाइट की जगह थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, और हाथ में बैठने के लिए 1-2 दिन जाएंगे। अंडरलाइन कंसेप्ट क्या है? क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक, लाइट, ये सब तो सेम रहना है सब में, है ना? अंडरलाइन आर्किटेक्चर जो रहेगा तीनों क्लाउड प्लेटफॉर्म का, इन केस ऑफ क्यूबरनेटिस भी मैं पकड़ूँ तो सेम होने वाला है। तो अगर जो बंदे को एक्टिव आती है वो बंदे को जुपिटर और ये सब नहीं आएगी क्या? बताओ। आएगी। ऑफ कोर्स आएगी, राइट? सो अभी क्लियर है, अभी थोड़ा सा ये समझ गया क्लाउड क्यों, डाउन टाइम क्या होता है, बेयर मेटल क्या होता है, ऑन प्रीमाइसेस क्या होता है, क्लाउड फुल्ली मैनेज्ड क्यों है, व्हाई वी आर ओनली लर्निंग। अभी समझा आज के सेशन का जो मैंने एजेंडा सेट किया था, व्हाई, कि कुछ भी कर रहे हो ना, व्हाई का आंसर क्लियर होना चाहिए कि डेटा सेंटर आया पिक्चर में तो क्यों आया, क्लाउड आया पिक्चर में तो क्यों आया, बेयर मेटल था तो क्यों था, उसके बाद ऑन प्रीमाइसेस आया तो क्यों आया। ऐसे ही आज और एक देखने वाले हम, क्या देखने वाले हैं? नॉर्मल ओवरव्यू, क्योंकि इसका तो डेडिकेटेड ट्रेनर है, और डेडिकेटेड ट्रेनर तुम लोगों के लिनक्स के सेशंस लेने वाला है। क्लाउड के सेशंस भी एक डेडिकेटेड ट्रेनर लेने वाला है, और आई विल बी कंडक्टिंग और डेवऑप्स के सेशन। अभी मुझे एक बात बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास विंडोज भी है, तुम लोगों ने कोई भी कंपनी के रेज्यूमे पे कभी ऐसे रिक्वायरमेंट में पढ़ा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम होने वाला है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग अपने प्रोडक्शन क्लस्टर पे यूज कर रहे हैं? सुना है तुम लोगों ने? कभी विंडोज के लिए हायरिंग होती है क्या? बताओ। नहीं। वाई? अच्छा चलो मैं पूछता हूँ तुम लोगों को, कल तुम लोगों ने थोड़ा सा शायद लिनक्स वगैरह का सेशन भी देखा होगा, वाई लिनक्स?
फ्री। ओपन सोर्स। बढ़िया है गुरु, ये बहुत अच्छा ड्रैगन था। ओपन सोर्स है मतलब फुकट। ओपन सोर्स का दूसरा मतलब क्या अपनी लैंग्वेज में? फुकट। ठीक है, व्हाट एल्स? Secured. हाईली सिक्योर। बहुत बढ़िया। सिक्योर। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अभी ना विंडोज 11 में भी बहुत सारे डिफेंडर वगैरह डिसेबल करके भी अगर मैं रखूँ ना, तो भी मेरा ना विंडोज वाला भी बहुत सिक्योर ऑपरेटिंग कस्टमाइज सिस्टम है कर दोस्त। सकते हो उसको। ठीक है। दूसरी बात, तुम लोगों ने ओपन सोर्स बोला। अभी जो मैं विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, ये इसके लिए मैंने कोई लाइसेंसिंग कॉस्ट दिया है क्या? नहीं राइट, मैं फ्री में यूज कर रहा हूँ इसको। देन वाई लिनक्स, है ना? इसको सिक्योर तो मेरा देखो, अभी अगर मैं इस पे पासवर्ड डाल दूँ ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो ये सिक्योर हो जाएगा मेरा। और ओपन सोर्स तो मेरा विंडोज भी है क्योंकि फ्री में मैं यूज कर रहा हूँ। व्हाट एल्स? आप समझा? अब इंटरव्यू कैसे अपने दिमाग के साथ खेलता है ना, कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करने के लिए, वो समझो। तो आप बताओ। सिक्योर बोल दिया आपने। compatibility compatibility कंपैटिबिलिटी, चलो लिख लेता हूँ बाय द वे। चलो ठीक है, एक पॉइंट हो गया। कंपैटिबिलिटी विंडोज में भी है दोस्ती है। हाँ, थोड़ा सा इश्यूज होते हैं कंपैटिबिलिटी के, बट है कंपैटिबिलिटी विंडोज में भी। नेक्स्ट बताओ, और क्या फीचर है? कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन। अरे यस। कस्टमाइजेशन तो आप इसमें भी कर सकते हो ना। जैसे ये थीम है मेरा, ये थीम मेरे को चेंज करना है, मैं सिंपली सेटिंग्स में जाऊंगा, थीम चेंज कर दूंगा। डेट है, डेट मेरे को 24 आवर्स के फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं डेट चेंज कर दूंगा। डोंट यू थिंक इसमें मेरा कस्टमाइजेशन भी है? ऑफ कोर्स है। देन वाई लिनक्स, आप बताओ। When you work in bigger organization, the cost is very big. For some paid licenses for Microsoft you have to pay, but for Linux it is lower as compared to तो Windows. लेट मी, ये आपका जो मिसकंसेप्शन है ये दूर कर देता हूँ मैं। ऑर्गेनाइजेशन में ये तो आप सही बात बोल रहे हो कि लाइसेंस्ड वाला वर्जन यूज करते हैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोडक्शन में। फोकट वाला यूज नहीं होता है। कौन सा होता है? लाइसेंस्ड वर्जन। लेकिन मेरे दोस्त, रेड हैट और सेंटोस के लिए भी लाइसेंसिंग के कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, विंडोज से थोड़े कम है ऑफकोर्स, बट ज्यादा ही है। तो अगर मैं इधर लिखूँ कि लाइसेंसिंग कॉस्ट अगर विंडोज में इन्वॉल्व है, तो लिनक्स में भी है, मैं बोलूंगा। चलो, और एक काउंटर दे दिया मैंने। अब क्या लगता है पाई लिनक्स? सोचो थोड़ा सा। जो सर्वर का स्पीड Command वगैरह line. लिनक्स की तो अच्छा मिलता है। command line interface Command line language. कमांड लाइन इंटरफेस मेरे को इसमें नहीं मिल रहा है क्या? सीएमडी से मेरे को इसमें नहीं मिल रहा है क्या? पावर शेल से? अब बताओ। चलो एक और लिख लेता हूँ, CLI। बोलते जाओ, काउंटर करते जाऊंगा मैं। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही सीखना बोल है। सकते हैं क्या हम? क्या बोल सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हो, बोलो। स्पीड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पीड वगैरह। आ अब थोड़ा राइट डायरेक्शन में सोचना चालू किया है तुम लोगों ने। अब सोचो, अब राइट ट्रैक पे हो। स्पीड कौन सी चीज है जो मेरी स्पीड डिसाइड करेगी? सही है, आपका पॉइंट बराबर है। राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। अब सोचो थोड़ा, इस पॉइंट पे सोचो। ये तो Linux graphical user कि interface पता है उसकी, more हाँ हाँ, GUI क्या? प्रोसेसिंग पावर बोल। प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया। अब ये समझना है कि ये दो जो एडवांटेज तुम लोगों ने बोले इसके, कि भैया प्रोसेसिंग पावर बहुत तगड़ा है एक तो, जो कि प्रोडक्शन में अंदर कस्टमर को चाहिए। दूसरी चीज, ये फास्ट है बहुत। ये दोनों किस वजह से पॉसिबल हुआ है पता है? एक तो है ये लाइट वेट। क्या है राइट। ये आप समझा टेक्निकली वही आंसर को एक एक्सपीरियंस बंदे के हिसाब से कैसे देना है, आप समझा? वो जार्गन राइट टाइम पे यूज करके। लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा। दूसरी बात, सबसे मेजर एडवांटेज, एक मशीन पे इट हैंडल्स मोर देन 120 प्लस कोर्स। विंडोज पे ना दोस्त, एक मशीन पे मोर देन 10-12 कोर्स आप यूज नहीं कर सकते हो। कोर्स मतलब क्या? CPU, मेमोरी, वर्चुअल CPU जो होता है ना अपना, उतना उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं। ऊपर ऊपर से ओवरव्यू समझेंगे। एक मशीन पे 120 से ज्यादा कोर्स रेड हैट की मशीन यूज कर सकती है। तो अभी जिसने बोला ना प्रोसेसिंग ज्यादा है, अब समझा प्रोसेसिंग क्यों ज्यादा है? कि भैया मशीन की कैपेबिलिटी देख लो कितनी तगड़ी है। मुझे एक बात बताओ, रेस कोर्स में अपने मूवीज में देखा होगा, आप शायद रियल टाइम में गए भी होगे रेस कोर्स में। जितने जॉकीज घोड़े दौड़ा रहे होते हैं वो रेस में, सारे घोड़े जीतते हैं कि एक घोड़ा जीतता है?
एक घोड़ा। बस वो एक घोड़ा अपने वाले केस में जो जीतने वाला घोड़ा है कौन सा है? लिनक्स, क्योंकि उसके पास में क्या है, 120 से ज्यादा कोर्स है। आप समझ गए लिनक्स क्यों? ये सारे फीचर्स तो मेरे विंडोज के पास में भी है दोस्त, बट लाइट वेट और प्रोसेसिंग पावर किसके पास है? Linux। बढ़िया, अब समझा। अब किसी ने भी पूछा ना, ये जिंदगी भर याद होना चाहिए दोस्त। ठीक है, अंडरस्टूड नाउ। और एक चीज समझते हैं, अब डिफरेंस समझना चालू करते हैं। लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा, और जो मेरा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें डिफरेंस क्या है दोस्त? चलो बताओ। विंडोज GUI बेस्ड है और लिनक्स कमांड लाइन बेस्ड। रियल ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, मतलब लिनक्स में मेरे पास जीयूआई नहीं रहेगी। दैट्स व्हाट यू मीन। ठीक है, ये तो मतलब डिफरेंस मेकिंग। ठीक है, चलो डिफरेंसेस को कंसीडर कर लेते हैं। व्हाट एल्स? और लिनक्स लाइट वेट है एज कम्पेयर टू विंडोज। बढ़िया है, ये इसे उठा रहे हो। और मेरे को एक बात बताओ, जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या आर्किटेक्चर है उसका? अगर किसी ने पूछा तुमको कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भैया आपको ये बोलना है, ये जो है ना मेरा, इसका क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। क्योंकि ना एज अ क्लाइंट हम सर्वर से बात करते हैं यहाँ पे। और ये जो मेरा है ना, ये भाई साहब है, मेन फ्रेम पे डेवलप्ड हुए थे ये। किस पे? मेन फ्रेम पे। मेन फ्रेम का ओएस का क्लाइंट है ये, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट। और ये कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो करता है? तो ये क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। किसको? किसी ने भी पूछा ना तुमको इसके बाद कि व्हाट इज लिनक्स आर्किटेक्चर या लिनक्स क्या है, तो बोलना है मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इट फॉलोज क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। अभी क्लाइंट एंड सर्वर की आर्किटेक्चर की मैं बात करूँ ना, तो इधर ना एक अपने मामा बैठे हुए होते हैं। तुमको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कौन करता है? हु टॉक्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम? डू यू नो दैट? कर्नल। हाँ, कौन करता है? कर्नल। कर्नल। बढ़िया, एक मामा जी बैठे होते हैं यहाँ पे। दिस इज द हार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कर्नल के नीचे, अभी तुमको क्या लगता है, अभी जो मैं ये मीरो पे बात कर रहा हूँ, क्रोम से बात कर रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन कैसे हो पा रहा है मेरा? तो कर्नल ना नीचे हार्डवेयर से बात करता है, और वही डिटेल ऊपर सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करता है। ये तो मीडिएटर है कर्नल। दिस इज द हार्ट ऑफ माई ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी वो थियरी हम समझेंगे नहीं दादा, ठीक है? वो तो तुम्हारे सेशन सारे होने होने वाले हैं। किसी ने भी पूछा ना, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको बोलना है। और दूसरा इसको बोलना है कि क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर है इसका। क्या है? क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। अब मुझे एक बात बताओ, लिनक्स जो है ना, लिनक्स किसने डेवलप किया है? हु डेवलप दिस ऑपरेटिंग सिस्टम? एक बंदा था लिनस टॉरवल्ड नाम का। क्या था नाम उसका? इसकी हिस्ट्री तुम लोगों ने पढ़ी होगी, वो चश्मिश। लिनस टॉरवल्ड था आई थिंक, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लिनुआ नहीं यार, लिनस टॉरवल्ड। इसने डेवलप किया। बट ये जो लिनक्स नाम आया ना, ये वर्ड वर्ड, अभी लिनक्स में आप मुझे एक बात बताओ, जैसे गिट बैश इंस्टॉल कर लो, अपना काम मोस्टली गिट बैश पे ही रहेगा। गिट बैश से प्रैक्टिस करने वाले ये जो है, ये जो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ अभी, इसको क्या बोलते हैं? ये जो अभी एग्जीक्यूट किया मैंने, एलएस वगैरह, ये कमांड। कमांड्स। वेरी गुड। तो ये जो कमांड्स वर्ड आया है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये कहाँ से आया है? क्या लगता है तुम लोगों को, कहाँ से आया होगा? ये कमांड जो वर्ड है ना, ये मिलिट्री से आया है। क्योंकि सबसे पहले जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया ना यूज करना, वो यूएस की मिलिट्री ने स्टार्ट किया 90s में या 80s में, कभी तो पता नहीं मेरे को। तो उन लोग मिलिट्री में क्या चलता है दोस्त? कमांड्स नहीं चलते हैं, एक दूसरे को कमांड देते हैं वो लोग। तो ये इसी के रीजन से ये जो मिलिट्री वाले हैं ना, एक दूसरे को ये कोड लैंग्वेज में इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कम्युनिकेट करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, लिनक्स। सो सबसे पहले यूज करना किसने चालू किया है पता है? लिनक्स। मिलिट्री वालों ने, यूएस बेस्ड मिलिट्री ने। और उन्हीं ने जो ये एलएस वगैरह, ये जो कमांड्स हम देख रहे हैं ना, सीडी, इसको कमांड नाम दिया है। क्यों? क्योंकि आप आपके सिस्टम को उसके अंदर कमांड दे रहे हो कि तू ये एग्जीक्यूट कर। अंडरस्टूड? डार्क वेब, हाँ। और लिनक्स में ना, यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज और भूल गए, सिक्योरिटी में ना एक चीज तुम लोग भूल गए। लिनक्स ज्यादा सिक्योर्ड है। पता है क्यों? इसमें दो फीचर्स है, एक तो एसी लिनक्स है और एक काली लिनक्स है। ये दोनों लिनक्स के अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, जो तुम्हारे सिस्टम को और ज्यादा मजबूत और सिक्योर बनाता है। सिक्योरिटी, एनहांस सिक्योरिटी है लिनक्स की। ठीक है, अब थोड़ा सा ना हम लोग
थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं लिनक्स के। आई एम श्योर सबको पता होगा। डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, Q&A लेंगे और हम आपको फ्री कर देंगे, डोंट वरी। BSD फेडोरा एक है, BSD एक है, सूजे एक है, ठीक है। अब आपको बताना है फेडोरा के कौन से प्रोडक्ट है। चलो BSD में I तुम think लोगों ने बोल दिया होगा, नहीं आई थिंक नहीं। BSD में जो तुम लोगों ने बोला है, तुम लोगों ने अबंतु का नाम लिया है। अबंतु एक प्रोडक्ट है डेबियन का। किसका प्रोडक्ट है अबंतु? डेबियन का, इसको बोलते हैं, मैं लिखता हूँ अबंतु। फेडोरा में आते हैं आपके सेंट OS, और एक बंदा आता है जो बहुत फेमस है प्रोडक्शन ग्रेड के लिए, बोलो क्या? और ये एंटरप्राइज है प्रोडक्शन में। बढ़िया, रेड हैट। सूजे के अंदर आते हैं सूजे के प्रोडक्ट, और एक कैटेगरी होती है मेरी अदर्स की। और सूजे के अंदर, सूजे बहुत कम यूज होते हैं वैसे। सूजे आपको ना मोस्टली चाइना वाइना में देखने को मिलेगा, बट अपने यहाँ पे ये 2-3 चलते हैं। सेंटोस चलता है अपने, रेड हैट चलता है, अबंतु चलता है। अब मुझे एक बात बताओ, तीनों में से हम कौन सा यूज करने वाले? क्यू। रेड हैट अगर कंपनी यूज करती है तो क्यू, सेंटोस यूज करती है तो क्यू, अबंतु यूज करती है तो क्यू। अब दूसरी चीज, ये डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए ना, तुम लोगों को पता है महिंद्रा की आज की तारीख में सबसे ज्यादा चलने वाली कार का मॉडल कौन सा है? थार। थार। थार ना? थार। थार। उसके Scorpio, yeah. पहले स्कॉर्पियो भी बहुत चली है। तो Yes. मतलब ये सेम कंपनी है मेरी। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, सारे लिनक्स के ही ओपन सोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपनी अलग है, उनका प्रोडक्ट, कंपनी सेम है ना, उनका प्रोडक्ट अलग है। मतलब इसको थार कंसिडर कर लो, इसको स्कॉर्पियो कंसिडर कर लो, ये दोनों भी मार्केट में बहुत ज्यादा चलती है। और ये भी चलती है, इफ यू आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र, आपको मारुति सुजुकी की स्विफ्ट बहुत देखने मिल जाएगी। डोंट यू थिंक सो? अगर आप कहीं पे गाँवठान में जाते हो ना, कहीं पे शेतकरी वगैरह लोगों में के पास जाते हो, तो आपको बोलेरो नाम की गाड़ी बहुत देखने को मिलेगी। Yes. देखा है Yes, किसी ने? और क्रूजर भी होती है उनके, जिसमें वो लोग 15-15, 20-20 लोग बैठ के जाते हैं। तो वहाँ के एनवायरमेंट के हिसाब से गाड़ी देखने को मिलती है आपको। जैसे आप अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज में जाओगे ना, तो वहाँ पे टोयोटा की गाड़ी, ज्यादा गाड़ियां देखने को मिलेगी आपको। जैसे इंडिया में अपने मारुति सुजुकी चलता है, महिंद्रा चलता है, वैसे। तो अब मुझे एक बात बताओ, अबंतु पे हम लोग क्यों काम करने वाले हैं? अगर प्रोडक्शन बेस्ड ग्रेड सर्वर ना अबंतु पे डिप्लॉय होते हैं, रेड हैट पे भी होते हैं, सेंटोस पे बिग डेटा के होते हैं, डेवॉप्स के रेड हैट पे, अबंतु पे, दोनों पे होते हैं। अब अगर इंटरव्यूअर ने तुम लोगों को पूछा कि विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर यू यूजिंग, तो आप लोग सिंपली क्या बोलोगे? लिनक्स। अब उसने पूछा स्पेसिफिकली विच डिस्ट्रीब्यूशन इन लिनक्स, तो क्या बोलोगे? जिस पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो अबंतु। बट व्हाई अबंतु? बोलो server class operating system. क्या है? Server class operating system. वर्ल्ड क्लास तो यार मेरा रेड हैट उससे भारी है, बट अबंतु क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? Server class. क्या है? Server operating system. क्लाइंट एंड सर्वर, ये तो सारे हैं, सेंटोस भी वो है, रेड हैट भी वो है। तो हम लोग अबंतु क्यों देखने वाले हैं? सिर्फ हम लोग अबंतु पे काम क्यों करने वाले? देखो क्यों करने वाले, इसका तो रीजन पता होना चाहिए ना, वरना वो मेंढो की तरह मैं आ रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे, कॉलेज में टीचर जैसा पढ़ाता है वो पढ़ा रहा हूँ, आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब एंड गोइंग अवे। दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। अप्रोच चेंज करना है, और वो अप्रोच की वजह से ही पीपल आर टेकिंग 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तुमको क्या लगता है 10-12 लाख बस इतने से बोले वचन देने के बोल देंगे, दे देंगे कोई भी? ऐसे आंसर देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे आंसर देना पड़ेगा, ऐसे तो मिलता है। ठीक है, अब बोलो मेरे को वाई अबंतु। सोचो यार थोड़ा। तो आई टेल यू वन थिंग, अबंतु इज द किंग इन वेब सर्वर्स। वेब सर्वर होस्ट करने के लिए अबंतु इज द किंग। और जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ना बाद में, क्यूबरनेट्स, जेनकिंस, 3 टियर एप्लीकेशन, प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन जो हम लोग CI/CD से, हेल्म से, EKS पे डिप्लॉय करने वाले हैं दोस्त, वो मेरी एक वेबसाइट होने वाली है, वो मेरा एक वेब सर्वर होने वाला है, जिसपे मैं अपनी वेबसाइट होस्ट करने वाला हूँ। तो वेबसाइट होस्टिंग के लिए कौन सा सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है लिनक्स खुद मेरे को? अबंतु, बिकॉज अबंतु इज द किंग इन वेब सर्वर। अंडरस्टूड नाउ? क्लियर है सबको? एवरीबॉडी? Yes. Yes. बस ज्यादा सोचना नहीं है यार, जितना अपने को कंसेप्ट थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और आंसर देना है। सो एवरीबॉडी इज क्लियर विद टुडेज सेशन? वाई लिनक्स वो सब हमने देख लिया, क्यों करने वाले हैं, कैसे यूज करने वाले हैं, क्लाउड क्या होता है, डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर में क्या क्या फ्लॉस थे जिससे ऑन प्रीमाइसिस पे आए हम,
डाउन टाइम किसको बोलते हैं, क्लाउड क्या क्या प्रोवाइड करता है, फुल्ली मैनेज्ड सर्विस अपने को देता है। अंडरस्टूड, एवरीबॉडी इज क्लियर। लेट अस बिगिन विद द Q&A सेशन। अगर किसी को कोई Q&A सेशन है, अगर ये किसी का फर्स्ट सेशन है तो लेट मी नो, Q&A करते हैं और एल्स विल रैप अप। सर मेरा ये फर्स्ट है। दैट इज फाइन लता। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज डू आस्क मी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पढ़ाने वाला अप्रोच है ना वो ऐसे ही होगा। देखो, टेक्स्ट बुक का वो रट्टा वाला ज्ञान पढ़ के ना पास तो हो जाएंगे हम, बट जब तक वो कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर नहीं है ना, आप भूलते रहोगे। इसको एज अ कंसेप्ट, इसको एज अ स्टोरी याद किया ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक बार इसका रिवीजन कर लोगे, पॉसिबिलिटी है कि आप इसको भूल पाओ कभी, कि क्लाउड में मैंने आज क्या नया सीखा। आज सबने बताया होगा ना वाई लिनक्स, क्यों लिनक्स पे काम कर रहे हैं, लिनक्स क्यों चल रहा है, बट ये सारी चीजें किसी ने बताई होगी क्या? आई एम श्योर नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल रिलेटेड आंसर्स है। एक बिजनेस लैंग्वेज में आंसर वो भी बंदे वही देंगे जो दूसरे इंटरव्यू देने वाले, और आंसर हम भी वही देंगे, बट हमारे आंसर में ना एक्सपीरियंस झलकेगा। हमारे आंसर में हम वी शुड नॉट साउंड लाइक अ फ्रेशर। इंटरव्यू इंप्रेस कैसे होता है, ये ऐसे टाइप के आंसर दोगे ना तो बोलेगा 15 नहीं 20 लाख ले आ जा, 12 नहीं 15 लाख ले आ जा। उसके पहले ना ये खिचड़ी समझना जरूरी है। अभी बहुत से लोग होंगे जो हो सकता है क्लाउड के मास्टर्स होंगे, लिनक्स के मास्टर्स होंगे, बट क्यों आया पिक्चर में लिनक्स, क्यों आया क्लाउड पिक्चर में, क्यों मैं AWS पे ही पढ़ा रहा हूँ, क्यों मैं डेटा सेंटर की बार बार बात कर रहा हूँ, ये सब क्लैरिटी होना जरूरी है ना। वैसे ही हम डॉकर की भी क्लैरिटी लेंगे, क्यूबरनेट्स की भी क्लैरिटी लेंगे, तो हर सेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने वाला है यहाँ से। सो आप इंश्योर करो कि नेक्स्ट वीक में जब भी आप आओ तो मेरा सेशन देख के आओ, ताकि क्लैरिटी और मिल जाए आपको। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड। अगर किसी को Q&A है तो लेट्स एड्रेस दी Q&A सेशन। Q&A सेशन चालू करते हैं फिर। डाउट से कुछ, किसी को कुछ भी डाउट रहने दो। एनी क्वेश्चन इज नॉट अ सिली क्वेश्चन फॉर मी, और जो जितना पूछता है आई बिलीव वो उतना बढ़ता है आगे। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड कुछ डाउट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ डाउट, कुछ कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है, बताओ। दिस इज योर प्लेटफॉर्म, मेक अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस। दिस इज द राइट फोरम टू टॉक अबाउट इट। बोलो, नो क्वेश्चंस? दैट मीन्स इट इज गोइंग गुड, देन वी आर गुड टू ड्रॉप, या फिर क्वेश्चंस है कुछ? यश, एनी क्वेश्चंस? यश, अरे सर, अगले अगले वीक में मतलब इसी का अगला पार्ट होने वाला है, समथिंग एल्स? आई मीन ना ना, जैसे कि अब कल। अगर मेरे को सेम चीज अगर पढ़ानी होती तो मैं सेम डे पे पढ़ा लूँ ना। व्हाई शुड आई अननेसेसरीली वेस्ट योर एंड माय टाइम, राइट? तो नेक्स्ट सेशन प्रॉब्ली हम लोग EC2 देखेंगे, एक ओवरव्यू काइंड ऑफ थिंग, एंड फिर आपके लिनक्स और क्लाउड के सेशंस खत्म होंगे, फिर विल डायरेक्टली स्टार्ट विद डॉकर। सर ठीक है, टाइमिंग रहेगा क्या डेली? टाइमिंग तो मोस्टली वीकेंड का यही रहेगा यार, 10:30-11, क्योंकि वीकेंड पे मोस्टली हम लोग यही टाइम पे फ्री होते हैं। मंडे टू फ्राइडे आई एम बीइंग like occupied for my office works, and there are some other commitments as well, so for me it's ओके possible to conduct sessions on weekend only. सर, मैं लैब क्वेश्चन, से ठीक है, इससे अलग है थोड़ा सा। क्या बोल रहे हो? मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती क्या, मतलब सेशन अरे से अलग है थोड़ा डेफिनेटली सा। डेफिनेटली, कुछ भी पूछो। बस मेरी बीवी और मेरे कितने बच्चे हैं ये सब छोड़ के पूछो, है ना, पर्सनल क्वेश्चन। वो नहीं पूछूंगी मैं। ठीक है। मेरे को ये पूछना था कि लाइक यहाँ पे बोला जाता है कि लाइक 100% प्लेसमेंट देंगे, तो इज इट ट्रू कि लाइक आफ्टर कोर्स अगर हम कंप्लीट करते हैं तो देन? अच्छा, तो इन लोगों ने ना 100% प्लेसमेंट अश्योरेंस बोला होगा। अब यू टेल मी, आपकी कोई कंपनी है, IT कंपनी हम्म। है क्या? नहीं हाँ बोल रही हो तो यार मेरे को भी जॉब दे दो फिर। नहीं नहीं ठीक है, नहीं आपकी नहीं। IT कंपनी नहीं है, मेरी भी IT कंपनी नहीं है, देन हाउ कैन आई गिव यू जॉब, और हाउ कैन एनीबडी गिव यू जॉब? ये ना बहुत जगह ना ये फ्रॉडस्टर्स बहुत बैठे हैं कि हम लोग 100% गारंटेड प्लेसमेंट देंगे तुमको। नहीं, प्लेसमेंट का अश्योरेंस में दे रहा हूँ कि तुमको हम इस काबिल या उतनी तुम्हारी वैल्यू हम बनाएंगे कि तुमको खुद से कॉल आएंगे। इफ यू डू द राइट थिंग्स एट राइट वे एट राइट टाइम, तो तुमको खुद कॉल आएंगे। देखो जॉब की ना मैं बताता हूँ, कॉल भी आ गया तो इंटरव्यू तुमको देना है कि मुझे देना है? डेफिनेटली हमको ही देना है। ऑफ कोर्स, अगर मैं यहाँ से A पढ़ा के जा रहा हूँ, वहाँ पे तुम लोग कैपिटल A की जगह स्मॉल A बोल रहे हो, तो अभी वो उसमें प्रॉब्लम मेरा है कि आप लोगों का, आपके अंडरस्टैंडिंग का गैप है। तो उसके लिए ना हम क्या करेंगे, मॉक का जो पैनल रहेगा ना, मॉक के पैनल को हल्के में नहीं लेना है। मैंने डेमो में भी बोला ये, मॉक वाले जो बंदे हैं, दीज गाइज आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट
4 years 5 years अच्छे अच्छे प्रोडक्शन ग्रेड क्लस्टर्स पे और प्रोजेक्ट्स पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो वो इतना डिफिकल्ट मॉक लेते हैं ना तुम लोगों का कि जल्दी क्लियर नहीं होता है। बट इफ यू क्लियर द मॉक, जैसे ही मॉक क्लियर होगा, रियल टाइम इंटरव्यू बिकम्स अ पीस ऑफ केक फॉर यू। प्रोबेबिलिटी है ना वहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करने की बढ़ जाती है फिर अपनी। अंडरस्टूड? हाँ, तो मतलब लोग सिर्फ एक मॉक कॉल देंगे या फिर जो चीजें प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन प्लेसमेंट का कोई ये नहीं है। देखो ये जो और लोगों की मैं ना ब्रूटली ऑनेस्ट वाले आंसर्स में और ना मतलब सीधे रास्ते से चलना मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे ना। क्योंकि अगर बिजनेस कर रहे होते तो वही सड़ा हुआ सा ज्ञान होता है, एक पीपीटी देखते आप लोग और वही टाइप का यहाँ पे सेशन डिलीवर होता। तो ना कोई भी ये बोलता है ना जब कि 100% गारंटी हम दे रहे हैं, एश्योरेंस में हम लोग वर्ड 100% यूज कर रहे होंगे, क्योंकि आई नो देयर आर हेल लॉट ऑफ जॉब्स इन डेवऑप्स। और अगर आपको ये बारे में देखना है तो आप एक बार ही ना मेरा फर्स्ट सेशन देख लो, उसमें मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है। बट इंडस्ट्री में रेज्यूम में क्या आप लोग मिस्टेक करते हो जिससे कॉल्स नहीं आती है, प्रोफाइल क्रिएशन के टाइम पे आप क्या मिस्टेक करते हो जिससे कॉल्स नहीं आती है। इंडिविजुअली मैं ना कॉर्पोरेट में सेशंस लेता हूँ ये चीज़ों के, लोगों को इसकी वर्कशॉप्स लेता हूँ मैं, तो आई नो कि कौन सा क्या रीज़न होता है जिससे कॉल्स नहीं आते हैं। एंड जैसे ही आपके मॉक क्लियर होंगे, आई विल बी द पर्सन हु विल पर्सनली सिट विथ यू ऑन अ जूम कॉल एंड वी विल मेक योर प्रोफाइल एंड रेज्यूमे ऑन लिंक्डइन एंड नौकरी। ठीक है सर इसका सपोर्टिव क्वेश्चन प्लेस कैंडिडेट उनका कुछ सेशन अरेंज कर सकते हैं क्या? मतलब हमें थोड़ा आइडिया है डेफिनेटली कि कैसे डेफिनेटली किया है उन्होंने कल स्टडी वगैरह कुछ। कल आई टेल यू, कल एक फाइन थिंग, आई डोंट नो वेदर दैट गाय जॉइंड और नॉट इन टुडेज सेशन। आई वेंट टू ऑफिस येस्टरडे एंड हम लोग की कुछ इंटरनल मीटिंग थी। कोई एक बंदा आया था इंक्वायरी के लिए ऑफिस में, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एक कैंडिडेट मुझसे मिलने के लिए आया था ऑफिस में, बिकॉज उसको एक ऑफर मिल गया है और उसका थर्ड कंपनी का सेकेंड राउंड क्लियर हो गया। तो पता है उसको बहुत सारे ना ऐसे डाउट थे, ट्रस्ट इश्यूज थे। एक चीज अच्छी हुई कि वो जब बंदा आया इंक्वायरी के लिए, हमने उसको डायरेक्टली बता दिया कि देख भाई ये अभी इंटरव्यू दे के आ रहा है। फिर उसने उससे डायरेक्टली बात कर ली। तो आपको चाहिए तो मैं एल्यूमिनाई का एक सेशन अरेंज करवा देता हूँ क्लास में, या फिर आपको जूम सेशन पे चाहिए, अगर कोई प्लेस्ड बंदे से बात करना तो आप उससे बात कर लो, ऑफर देखना है तो आप क्लास में जाके ऑफर विजिट कर लो। मैंने तो मेरा लाइव व्हाट्सएप भी शेयर करके बताया कि हमारा रेफरल प्रोग्राम वगैरह कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो दैट इज फाइन इफ यू वांट दैट। एल्यूमिनाई सेशन को एक वीकडे में हम अरेंज करवा सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। ठीक है ओके, नाउ क्योंकि उस मुक्सर, हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा जिसको मतलब अभी डेफिनेटली यार, ये तो क्या मतलब यार ये तो जॉबलेस आपकी आपकी जगह पे मैं रहूँ ना तो मैं भी यही चीज सोचूं। बट आई हाँ अंडरस्टैंड कि क्या होता है ना, बहुत से लोगों ने इसको धंधा बना के रखा है इंस्टीट्यूशन को। यस 80,000 ले रहे हैं, 60,000 ले रहे हैं, पता नहीं, सम पीपल आर चार्जिंग लैक्स। आई यूज्ड टू कंडक्ट अ सेशन फॉर वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा इंस्टीट्यूट है। दे आर चार्जिंग 70,000। अब तुमको पता है क्यूबरनेटिव्स के कितने सेशन लिया है उसने, उनके एग्जिस्टिंग ट्रेनर ने। मैंने उसको बोला भाई पहले तेरा कंटेंट बता, तू पढ़ाता क्या है। 1.5 घंटे के 2 क्यूबरनेटिव्स के सेशन, सोचो। और पूरे डेवॉप्स की क्यूबरनेटिव्स ना जान है अपने यहाँ पे। क्यूबरनेटिव्स के नहीं भी बोलूँ तो मैं तुमको 2-2.5 महीना सिर्फ क्यूबरनेटिव्स चलता है अपना। तो यू सी द डिफरेंस। दूसरी चीज, अगर आपको दोस्त हम पे ट्रस्ट इशू है तो संदीप आपको नहीं लगता है हमको भी होना चाहिए? क्योंकि मेरी तो 6 महीने की मेहनत जाएगी, मॉक का इन्वेस्टमेंट और टाइम मेरा अलग जाएगा। और हम लोगों ने ये पोस्ट प्लेसमेंट वाली भी कुछ रखी है ना, अपने एडमिन टीम से शायद बात की होगी कि आपको जो यस भी हाफ अभी पे करना है हाफ बाद में। अगर हम आपके पोटेंशियल को इतना पुश कर सकते हैं कि आप कर सकते हो, तो यू शुड ऑल्सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। क्योंकि हमको तो नहीं पता ना यार ये 20-25 बंदों में से कितने लोग जॉब लेने वाले हैं, राइट? तो इफ वी कैन ट्रस्ट यू, इवेंचुअली यू हैव टू ऑल्सो ट्रस्ट अस। हाँ बट ये कुछ कुछ बेसिक बेसिक क्वेरीज होती है, आई अंडरस्टैंड। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मुझे भी डाउट्स होते हैं। दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। मेरे पास में प्लेस कैंडिडेट्स है, गेस्ट सेशन वो लोग लेते हैं, एल्यूमिनाई मीट्स वो लोग करवाते रहते हैं। तो अगर आपको ऑफिस में चाहिए आप बोलो, ऑफिस में अरेंज करवा देंगे। अगर आपको ऐसे जूम सेशन चाहिए आज तो जूम में होगा तो सबका उसको मतलब फायदा हो जाएगा। दैट इज फाइन। आप लोग कौन से डे पे कंफर्टेबल हो बता दो, लेट मी चेक विद दैट क्योंकि नॉलेज पर्सन जो शेयर भी मैं। होगा उन्होंने कैसे किया था क्या जो डेफिनेटली भी। यार, या डेफिनेटली विल डू इट, डोंट वरी। सर, एक और चीज, ये 6 मंथ का, 5 to 6 मंथ का रहेगा, राइट? अगर अगर इनके हाँ, अगर हाँ, आप चाहते हो तो मैं पूरा साल पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बट आप क्या साल भर जॉब लेने के लिए रुकने के लिए तैयार हो क्या? क्यों? बिल्कुल लेट नहीं मी टेल सर। यू, रीजन। जब मैं 2-2.5 साल पहले जब बहुत बूम में इंटरव्यूज दे रहा था ना, तब मैंने टेराफॉर्म पढ़ा भी नहीं था। लेट मी टेल यू, आज बिना टेराफॉर्म के जॉब ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते हो, बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब टेराफॉर्म आईबीएम ने खरीद लिया है, पता है आप लोगों को? टेराफॉर्म अभी इज नो लॉन्गर ओपन सोर्स, आईबीएम ने उसको एक्वायर कर लिया है। नाउ
अगर 6 महीने की जगह हम साल लेते हैं, साल में अगर कोई नया टूल आ गया तो आपके लिए तो चैलेंज बढ़ गया ना दोस्त। देखो राहुल ने राइट। बोला है टेक्नोलॉजी और टूल बदलता रहेगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है दोस्त, साल भर पढ़ाऊंगा मैं। नहीं, बट मैं मुझे चाहता हूँ कि जल्द डाउट से जल्द था। जॉब लगे तुम लोगों को। जितना बिल्कुल। कंटेंट ही ऐसा डिजाइन किया है कि देखो डेवऑप्स ना, आप मेरा लता सेशन देख लो, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था ना, देर आर थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ टूल्स। अब हर टूल तो हम नहीं पढ़ सकते, बट अगर मैं तुमको एक्टिवा चलाना सिखा दूं, जुपिटर वगैरह चला लोगे कि नहीं चला लोगे? बस तो मैं एक्टिवा में एक्सपर्ट बना रहा हूँ। क्यों? सबसे ज्यादा मार्केट शेयर एक्टिवा का है मेरे पास, जेनकिंस का है, ईकेएस का है, टेराफॉर्म का है। तो वो टूल्स हम लोग ने चेक कर लिए, वो टूल्स हम लोग पढ़ा रहे हैं। जो टूल बहुत कम कंपनीज यूज करती है वो पढ़ के मतलब नहीं है, क्योंकि जिसकी सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है वो टूल्स पढ़ो। लॉजिकली स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। नहीं, बट मेरा सिर्फ इतना डाउट था कि इनकेस अगर कोई भी कैंडिडेट अगर 5-6 मंथ में नहीं वो चीजें कवर कर पाता है तो उसको क्या एक्सटेंड किया जाता है? तो यार मुझे एक बात बताओ, वीक में 2-2 घंटे, हार्डली तुम लोग 3 से 4 घंटे मुझे दोगे, बाकी के 6 दिन तो आप फ्री हो ना। मेक अ गुड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट। 1 घंटा दिन में खुद को दे सकते हो हाँ? उसमें से भी हफ्ते में आपकी 2-3 दिन लैब सेशंस रहने वाले हैं, उसमें भी डाउट क्लियर कर सकते हो आप। मतलब खुद पे बिलीव रखो थोड़ा। इफ एन एवरेज पर्सन लाइक मी कैन डू इट मैन। लता तुमने तो खुद का डेटा सेंटर चालू कर दिया था आज, तो बताओ व्हाई यू कांट डू इट, राइट? सो मुक्सद का एक क्वेश्चन है, आई एम अटेंडिंग द फर्स्ट सेशन, विल यू कवर द बेसिक पावर पाइथन? पावर शेल देखने वाले यार हम, मुक्सद डोंट वरी। जो हमारी क्यूबरनेटिव्स की इंस्टॉलेशन होगी ना दोस्त, वो पावर शेल स्क्रिप्ट, पावर शेल नहीं यार सॉरी, शेल स्क्रिप्ट से होगी, सॉरी। और पाइथन की अपने को अपने कोर्स में जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरे को खुद को डेवलपमेंट नहीं आता है। और डेवलपमेंट आता है तो आंसर कैसे देना है, डेवलपमेंट नहीं आता है तो आंसर कैसे देना है, ये मैं बता दूंगा ड्यूरिंग द सेशन। मेरे को भी बहुत लोग पूछते थे कोई आता है क्या। चैट जीपीटी के जमाने में डेवलपमेंट तुमको सच में लगता है अपने को सीखने की जरूरत है? अभी रिसेंटली मैंने मेरे प्रोजेक्ट के लिए लैम्डा फंक्शंस लिखे हैं, मेरे को नहीं आते हैं, पाइथन में ही लिखे हैं। पता है किसने लिख के दिए मेरे को? चैट जीपीटी। कंपनी को पता है कि मैंने कहाँ से करवाया हो? नहीं। उन लोगों को अपना काम, उन लोगों को क्या मतलब है पता है? उनको काम होना चाहिए, कैसे होता है दे डू नॉट केयर। और अपने को पता है कैसे होता है, और वो अपन ये 5-6 महीने में सीखने वाले हैं। कौन सी रिसोर्सेज है जिधर से अपना काम बनने वाला है? एवरीथिंग इन IT इज कॉपी एंड पेस्ट, यू जस्ट नीड एन इंजीनियर टू नो वेयर टू कॉपी व्हाट एंड वेयर टू पेस्ट इट। लाइकवाइज यू नीड इंजीनियर फॉर दैट। एवरीथिंग इन IT इज कॉपी एंड पेस्ट, सब कुछ पड़ा हुआ है ऑनलाइन, कुछ स्क्रैच से नहीं करना है, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस गाइस? सर भूषण दिस साइड। सर आप टेक्टा में कौन से प्रोजेक्ट पे थे अभी? सो दोस्त, मैं क्लाइंट का नाम तो रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट एक यूएस बेस्ड टेलीकॉम प्रोवाइडर था। सो आई हैव वर्क टेक पहला सेशन देखा हो क्या? पहले सेशन? नहीं सर नहीं देखा मैंने, अब मेरा पहले फर्स्ट सेशन है फर्स्ट एक्चुअली। सेशन AT&T में BT। बताया मैंने। तो ओके। देखो मेरे बहुत सारे दोस्त बीटी में भी थे, बट आई वाज अच्छा अ पार्ट ऑफ AT&T, एंड AT&T ने लेटर एक्वायर्ड क्रिकेट वायरलेस। सो आई यूज्ड टू वर्क फॉर मोर देन अ ईयर क्रिकेट वायरलेस में AT&T में। तो मैंने पूरे 2.5 साल काम किया है। सर एक्चुअली मैं BT का कंप्लायंस वगैरह देखता हूँ। तो बढ़िया है यार, तुम बीटी का ही प्रोजेक्ट बताओ। है ना, यूके है ना? हाँ सर। यूके का लीडिंग टेलीकॉम प्रोवाइडर, करेक्ट? राइट सर। तो बीटी बताओ, मैं लास्ट में बताऊंगा तुमको। बीटी का मेरे पास ना पूरा एक PDF है, मैंने उस पर एक अच्छा। प्रोजेक्ट भी बनाया था। तो तुम जब मॉक क्लियर कर दोगे ना, हाँ रीच हाँ आउट टू हाँ। मी, मैं वो PDF शेयर करूंगा, वही बताना है तुमको। ओके तो सर तुमको ओके। कैसा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि भाई मैं काम भी वही प्रोजेक्ट पे कर रहा हूँ, मेरे को बेटर अंडरस्टैंडिंग है, तो वही प्रोजेक्ट बता लेता हूँ। अब देखो मैं किधर बैठा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैंने क्या पहना है, मैं क्या खाता हूँ, तुमको पता है क्या? आई एम एन एनोनिमस पर्सन फॉर यू। सिमिलरली राइट। इंटरव्यूअर के लिए यू आर एन एनोनिमस पर्सन। इट इंटरव्यूअर इम्प्रेस कब होता है? द वे यू आंसर हिम, कितना कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाते हो, उसको पता है क्या अंदर तुमने क्या बनाया है, किस चीज पे तुम काम कर रहे हो, या वो आके देख सकता है? इज ही अलाउड टू डू दैट? नो। तुमको जो बोलना है उसको वो बिलीव करना ही पड़ेगा। अब ये इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे बोलते हो उसको, कैसे कन्विंस करते हो उसको। अंडरस्टूड? यस परफेक्ट। सो एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? सर, सर लैब जैसे यश हियर। यस यश बोलो। या सो कल लिनक्स के बेसिक्स हुआ था, तो उतना ही लिनक्स मींस आगे यूज होगा या अपन वक्त के साथ साथ और एडअप करते चलेंगे उसको? तो देखो पहली चीज वो समझ लो, अभी ना मैं बार बार ये एग्जांपल देते रहता हूँ मोपेड बाइक का। एक्टिवा सीखने के लिए आपको गियर डालने आनी चाहिए, क्लच पकड़ने आना चाहिए क्या? नहीं। 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 एक्टिवा सीखने के लिए बस ब्रेक पकड़ लो,
एक्सेलरेट कर दो गाड़ी को, गाड़ी चलने लगी। अगर यही मैं सिचुएशन रिवाइज करूँ, गियर की गाड़ी सीखने के लिए गियर डालना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। सिमिलरली कार के केस में भी सेम है, ऑटोमेटिक के लिए आपको गियर वाला सीन नहीं है, मैनुअल लोगे तो गियर वेयर डालना चेंज करना आना चाहिए, क्लच का जजमेंट वगैरह होना चाहिए। सिमिलरली ये जो जॉब है ना, दिस प्रोफाइल दिस रोल इज फॉर, पहली बात तो अपना रोल समझ लो। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, इंटरव्यूअर को ये बताना है, उसका तरीका होता है वो बताने का, वो हम सीखेंगे। उसको बोलना है कि मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ क्या? नहीं। बट डेवऑप्स के ऑपरेशंस, ट्रबल शूटिंग, इशू रिजॉल्व किस पे होता है? लिनक्स पे होता है। तो जितना डेवऑप्स के लिए जरूरी है उतना लिनक्स अपने को सीखना है कि पूरा लिनक्स सीखना है? जितना जरूरी है। बराबर। तो जितना डेवऑप्स के लिए क्लाउड जरूरी है अपने को उतना क्लाउड सीखना है कि पूरा क्लाउड सीखना है? जितना जरूरी बस है। ही तुम्हें आंसर दे रहे हो। क्लाउड में 200 से ज्यादा सर्विस है दोस्त, कितना क्लाउड सीखोगे? क्लाउड का सोल्यूशन आर्किटेक्ट नहीं बनना है अपने को, डेवऑप्स इंजीनियर बनना है। तो डेवऑप्स के लिए जितनी सर्विसेज जरूरी है, डेवऑप्स के लिए जितना लिनक्स जरूरी है, उतना अपन कवर करवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है? ओके, या थैंक यू। यस। What else, guys? Any other questions or we are good to drop? सबके प्लान्स होंगे ना, टुडे बीइंग संडे। नहीं सर, हमारा शिफ्ट है ऑफिस। ओ यार, मेरा भी ऐसे ही होता है। समटाइम्स आई एम वर्किंग ऑन फ्राइडे, समटाइम्स आई एम वर्किंग ऑन संडे। मेरा तो 24/7 ऑन कॉल होता है, कभी भी कॉल आती है मेरे को। हमारा भी 24/7 शिफ्ट है। बट ना कभी आई भी वुड रेकमेंड फॉर द पीपल हु आर वर्किंग, इवन आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम अ बीपीओ, एम्फेसिस करके एक कंपनी है खगड़ी में, इवन आईटी पार्क में, सुना होगा शायद आप लोगों ने। मैंने आई स्टार्टेड माय करियर विद अ बीपीओ, सो आई विल डेफिनेटली गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, यू नो। कोई भी नया काम करने के पहले ना पुराना काम छोड़ के नहीं करना है। मतलब क्या, ब्रेड एंड बटर अर्निंग अपनी चालू होनी चाहिए, उसके अलावा आप कर दो ना। जिंदगी में खुद को दिन में 1 घंटा नहीं दे सकते हो? एंड लेट मी टेल यू, मैं हमेशा बोलता हूँ 5-6 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क कैन पुट यू 5 years अहेड इन लाइफ। मेरे साथ हुआ, ये पिछले 2-3 सालों से हो रहा है। मैं हर साल में 5-6 महीना एक्स्ट्रा अच्छी मेहनत करता हूँ, इट पुशेज मी 5-6 years अहेड इन लाइफ। मेनी टाइम्स इन माई एक्सपीरियंस, एक मैं जब मेरे को 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस था, आई वॉज लिविंग कॉग्निजेंट, माई कॉग्निजेंट टीम वांटेड टू रिटेन मी, वो मेरे को रोकना चाहते थे, तो देवर ऑफरिंग मी अ नंबर, और मेरे को मेरे सीट जो मेरे को ऑफर मिल रहा था उससे 5-6 लाख कुछ कम था वो। देन मेरे मैनेजर ने मुझे पूछा कि व्हाट इज द अमाउंट यू आर गेटिंग देयर, सॉरी इन कॉग्निजेंट। तो मैंने बोला यही अमाउंट मेरे को मिल रही है। दैट गाय ही हैड फकिंग 18 years का एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा टेक्निकल साउथ इंडियन बंदा था। एंड उसने मुझे बोला लिटरली कि साले इतना पैकेज तो मेरे को भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सो मेनी ऑफ द टाइम्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके मैनेजर्स, टेक लीड्स, इनसे भी ज्यादा सैलरी हो आपको। बट ये एथिकल नहीं है कि सैलरी आप डिस्क्लोज करो। क्यों होता है वो पता है? इट कम्स विद एन एक्सपर्टीज, इट कम्स विद हाउ यू नो डील विद द सिचुएशन, आर यू अ रेजोल्यूशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर और नॉट फॉर द कंपनी। सो ये कैपेबिलिटी खुद में बिल्ड करनी है। बट ना प्रीवियस जॉब छोड़ोगे, प्रेशर में आओगे, फिर हो सकता है प्रिपरेशन के लिए टाइम लग जाए, तो ना साइड बाय साइड पैरेलली चलो। टाइम मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट क्वालिटी, टाइम मैनेज करो। तो पहला जॉब छोड़ के मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ कि तू डेवऑप्स में जॉब ले ले। वो जॉब तू लेता रहे, वो जॉब तू करता रहे, जब डेवऑप्स में आ जाए तो पेपर डाल देना। क्या बोलते हो? प्रेशर में लाइफ नहीं जीनी चाहिए, दैट इज नॉट गुड। ठीक है गाइस, क्लियर? Yes, Yes. sir. Hello. Hi, Shakib. This is हाय Kiran here. किरण। Yeah, I want to ask one question. We are working in Tier 2 and we have like 3 months of notice period. How do you deal with this? बहुत बढ़िया है। सो तुमको क्या लगता है ये जो दोनों कंपनी के नाम मैंने लिए, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, इनका नोटिस पीरियड कितना है? 3 months. एग्जैक्टली। सो आई डिड मैनेज टू टैकल इट, राइट? मैं टैकल किया है अभी। इनफैक्ट मैं कल की एक बात बताऊंगा। आई हैव अ पर्सन हु इज वर्किंग इन साइबेज एज अ टेक्निकल सपोर्ट गाय। चाहिए तो मैं उसी का सेशन अरेंज करवाता हूँ तुम लोगों के लिए। 90 days का नोटिस है दोस्त उसका, और अभी उसको रिसेंट में 12 लाख की जॉब लगी है टेक सपोर्ट से स्विच करने के बाद। ठीक है? उसको भी 3 महीना कंपनी को हमने रुका दिया। बानेर में या बालेवाड़ी में उसकी कंपनी है, एला वोरो करके, मिड स्केल एक स्टार्टअप अभी बूम में। दे हायर्ड हिम। तो करना क्या है बेसिकली, 3 महीने। देखो आजकल ना कंपनीज बहुत होशियार हो गई है। टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, एक्सेंचर, ये कंपनीज आपको 90 days रुका के रखती है, और सेम कंपनी जब हायर करती है ना तो बोलती है 15 दिन में ज्वाइन करो। है ना? कितने ड्यूअल स्टैंडर्ड्स है ना। तो इसको टैकल कैसे करना है? पहले नोटिस पीरियड पे आपको डेट डालनी है 60 दिन की या 1 महीने की, और सर्विंग डालना है वहाँ पे। इससे क्या होंगे, कॉल्स
आना चालू होंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर सबसे पहले ना वही देखता है कि इसका नोटिस कितना है। तो आप बोलो मैं सर्व कर रहा हूँ, ये डेट है, 1 महीने के बेस पे ऑफर ले लो पहले, वो ऑफर लेटर के बेस पे काउंटर ऑफर लो 1 महीने के बाद का डेट का। और उस टाइम पे ना 2 एडवांटेज ये होते हैं आपके कि प्रीवियस कंपनी को मेल डाल के आप बोलो कि ऑफर लेटर आपने रिलीव कर ही लिया है, तो अभी मेरे कुछ पर्सनल इशू हो गए, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, इसलिए 1 महीना एक्सटेंड हो गया है, तो वो बढ़ा के दे देंगे। या फिर आपके पास अगर ये नहीं मानते तो दूसरा ऑफर तो ऑलरेडी है ही, काउंटर ऑफर। ऐसे टैकल करना है इसको। मतलब ये तो इंडिविजुअली जब हम ऑफर वगैरह आ जाएगा आपके पास में, तो ये मैं गाइड करूंगा इंडिविजुअली कैसे टैकल करना है, बट इट्स नॉट अ बिग डील, टेंशन मत लो। 90 डेज का नोटिस तो अपने लिए कुछ नहीं है, कर लेंगे टैकल उसको। ठीक है किरण, क्लियर? Yes, yes. Perfect. Guys, any other questions? Yeah, we should wrap up. Yeah, we should wrap. Yes. We are Okay, good to chalo. Much. It was nice talking to you guys. I wish you all a very good day. Let's catch up next week. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.